Assalamu alaikum, everyone. Formally welcoming you all to this session. Hopefully, this will be very beneficial for all of you, especially for those who are appearing in the exam. And I want to congratulate all the candidates who have passed today FCPS Part 2 exam. You are almost there, and 50% of the work is done. That was theory, and now you have to do the clinicals. Hopefully, this session will be very beneficial for you. And let me introduce my co-host today for this meeting, Dr. Mahjabeen Memon. I think she is having some connection difficulties. She has joined us back. Assalamu alaikum, everyone. Is my screen visible? Yes, we can see it, Dr. Mahjabeen. Okay, so can we start? Yes, you can start. Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Mahjabeen Memon, working as a consultant neurosurgeon at the Department of Neurosurgery, Civil Hospital, Hyderabad. And me and Dr. Babar Ali Qureshi have initiated this maiden neurosurgery exit exam preparation course. And all we intend is to give you practical tips on clearing this technical exam. First of all, I would like to welcome all of you who have joined us, and I would like to congratulate because the result has been out. So I would like to congratulate everyone who have cleared their exam, and those who couldn't clear the exam, inshallah, ta'ala, next time, because sooner or later, inshallah, you will ace. ये exam कहीं नहीं जाएगा. बाकी, as far as the clinical exam is considered, to begin with, yes, okay. To begin with, we know that preparing for the neurosurgery exit exam is not just about knowledge. It's about strategy, confidence, and time management. I have seen a lot of people who are a lot knowledgeable, but due to the lack of few strategies, few lack in time management, they are not able to ace this exam. So we tend to tell you in this lecture that basically it's not just another lecture. It's the beginning of a journey where we help you think like an examiner, perform like an expert, and succeed as a consultant neurosurgeon. Because the thing, the basic thing to clear this exam is to think like an examiner. What is expected from you from the point of view of an examiner? So the objectives of today's session are we'll overview the structure of the exam. We'll see how to approach talks, short and long cases, and we'll share some practical tips and tricks to ace the exam. To start with, I will be discussing talks and short cases, and long cases will be covered by Dr. Babar. Let's start with the basic layout of the clinical exam. In FCPS Part 2, we have 16 talk stations, 4 short cases, and a long case, 1 long case. Whereas in MS Part 2 exam, we have 10 talks stations, 4 short cases, and 1 long case. So let's start with the talks. Talks stands for Task Oriented Assessment of Clinical Skills. जब आपका एग्जाम क्लियर होता है, जब रिटन एग्जाम क्लियर होता है, उसके 1 और 2 मंथ्स के बाद आपकी क्लिनिकल्स की डेट आती है. तो देयर आर 2 days. डे 1 पे टॉक्स होता है, डे 2 पे आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस होते हैं. तो ये डे 1 पे टॉक्स होता है और द पासिंग परसेंटेज इज 60%.
होता ये है कि जिस दिन टॉक्स होता है, अगर 60% से ज्यादा आपके मार्क्स हैं तो यू विल बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल। अगर 55 to 59% के बीच में मार्क्स होते हैं तो आपको बॉर्डर लाइन कंसिडर किया जाता है। आप उस अटेम्प्ट में यू आर अलाउड टू सिट इन द एग्जाम, लेकिन अगर उसमें सिट इन द एग्जाम में से मतलब कि उस अटेम्प्ट में आप लॉन्ग शॉर्ट केसेस में बैठ सकते हो। अगर आपने वो अटेम्प्ट क्लियर कर लिया तो आपके क्लिनिकल्स क्लियर होंगे। अगर आपने उस अटेम्प्ट में लॉन्ग शॉर्ट केस क्लियर नहीं किया तो यू विल डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल इन टॉक्स एज वेल। ठीक है, फेलियर का वर्ड मैं यूज नहीं करूंगी बिकॉज नो बडी इज अ फेलियर। ये टेक्निकल एग्जाम है, डजेंट डिफाइन यू, इट डजेंट लेबल यू एज अ फेलियर। अनसक्सेसफुल और इनएलिजिबल इज अ बेटर वर्ड। बाकी जो 55% से कम जिनके भी मार्क्स होते हैं टॉक्स में, दे आर डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल, तो वो आगे से जो है नेक्स्ट टाइम दोबारा टॉक्स देते हैं। अब टॉक्स का अगर हम पैटर्न देखें, 16 स्टेशन जो FCPS पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं, 1 स्टेशन इज ऑन ई लॉग बुक, 1 स्टेशन इज ऑन काउंसलिंग। ई लॉग बुक पे जो आप होते हो, आपकी जो भी ई एंट्रीज होती हैं, जो आप अपनी लॉग बुक में एंट्रीज करते हो, आप उसको कुछ दिन बिफोर हैंड देख लिया करें, ताकि आपसे उस ई लॉग बुक पे जो क्वेश्चंस हो तो आपको पता होगा कि क्या क्या एंट्रीज हैं और आपकी बेसिक जो सर्जरीज आपने जो एंट्री की हैं उनके स्टेप्स आपको आते हैं। नंबर 1, जो काउंसलिंग पे स्टेशन होता है उस पे या तो एक अटेंडेंट को ही बिठाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में काउंसलिंग जो है वो सेरिब्रल मेटास्टेसिस की होती है। कोई ओल्ड एज पेशेंट होता है लंग कैंसर का, उसको सेरिब्रल मेट्स होते हैं, उस पे आपको काउंसलिंग करनी होती है। या ब्रेकिंग बैड न्यूज पे जैसे ब्रेन डेथ की, आपको जो है वो ब्रेन डेथ की काउंसलिंग करनी होती है। दीज आर द 2 स्टेशंस जो कि कांस्टेंट होते हैं। बाकी जो 14 स्टेशंस होते हैं, दे में इंक्लूड एनी टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग। न्यूरो एनाटमी से लेके रेडियोलॉजी, क्लिनिकल सिनेरियोज। रेडियोलॉजी में आपकी CT, MRI, एंजियोग्राम, एक स्टेशन एंजियोग्राम पे जरूर होता है। Also there can be a station on instruments like neuroendoscope के कोई भी आपके जो है वो pediatric या adult neuroendoscopy के रख सकते हैं। पेडिकल स्क्रू के किट रख सकते हैं। लेक्सल जो फ्रेम है स्टीरियोटैक्टिक, वो है सर्वाइकल ट्रैक्शन, उस पे भी आपका एक टॉक्स का स्टेशन बन सकता है। सो वील गो थ्रू कॉमन टॉक्स स्टेशन जो हम देखते हैं। कंजेनाइटल में हाइड्रो पे आ सकता है। हाइड्रो पे कैसे कि आपको एक पिक्चर दे दी हाइड्रो की, एक्विडक्टल स्टेनोसिस की, उस पर फिर आपके सारा जो है वो आपका हाइड्रो का वाइवा हो गया या नॉर्मल प्रेशर हाइड्रो पे हो गया। स्पाइनल डिस्टेफिज्म में मेनिंगोमाइलोसील, टीदर्ड कॉर्ड का MRI दिखा दिया, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा लो लाइन कोनस है, टीदरिंग है, और लाइपोमेनिंगोमाइलोसील भी अक्सर इसी में होता है। तो स्पाइनल डिस्टेफिज्म पे आपको आता है डायस्टोमेटामाइलिया का, आपको MRI दिखा सकते हैं, एक्सियल कट, उस पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उस पर मैनेजमेंट पूछते हैं। क्रेनियोसिनोस्टोसिस आपको 3D दे सकते हैं या आपको सिंपल बच्चे की पिक्चर दिखा सकते हैं, उस पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा टाइप ऑफ है क्रेनियोसिनोस्टोसिस। एनसेफेलोसील, उसकी पिक्चर हो सकती है। ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर पे CT स्कैन पे आपको जो है वो आइडेंटिफाई करवाते हैं। क्यारी पे MRI जो है उस पर आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं, उसकी इमेज दिखाते हैं। CVJ एनोमलीज में जैसे बेसिलर इन्वेजिनेशन है, एटलांटोएक्सियल सबलक्सेशन है, इस तरह की कोई भी जो है, या क्लिपल फेल्ड सिंड्रोम है, उसकी पिक्चर या CT स्कैन की पिक्चर को दिखा सकते हैं। एरेक्नोइड एपिडर्मोइड सिस्ट, एरेक्नोइड मिडिल फोसा की भी हो सकती है, CP एंगल की, तो वो आपको उसकी पिक्चर दिखा सकते हैं MRI की या CT स्कैन की। न्यूरो एनाटमी इज समथिंग, इसके काफी सारे स्टेशंस हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली आते हैं वो ये 6-7 हैं। इंटरनल ऑडिटरी कैनाल की एनाटमी बहुत कॉमनली आती है। ठीक है, आपको सारा बिल्स बार और ये जो है वो 7th नर्व 8th नर्व की जो 4 कंपार्टमेंट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये बहुत कॉमन है, ये पूछते हैं, ये आती है, तो ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। बाकी CP एंगल पे 7th नर्व 8th नर्व के सारे CP एंगल पे जो वेसल्स होती हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, 3 कॉम्प्लेक्सेस सुपीरियर मिडिल इंफीरियर, वो हम जब आगे अपने मॉड्यूल्स करेंगे, विल अनाउंस इट इंशाल्लाह टुडे, तो उसमें फिर इंडिविजुअली एक एक हम स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे सारे टॉपिक्स को। वीनस एनाटमी सुप्रासेरेब्रल इंफ्राटेंटोरियल, आपको पिक्चर देते हैं एक सुप्रासेरेब्रल इंफ्राटेंटोरियल क्रेनियोटमी की, पाइनियल रीजन की, और उसमें जो है सारी जो मेन आपकी वीनस ड्रेनेज है उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे वेन ऑफ गैलन है,
और इंटरसेबुलर वेन है, ठीक है, ये सारी जो वेन्स आती हैं, बेसल वेन ऑफ रोजेंथल, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करनी होती हैं। ऑर्बिट की एनाटमी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्बिट में सारे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स, क्रेनियल नर्व 3, 4, 6 और ऑप्टिक नर्व, ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। कैवर्नस साइनस पिट्यूटरी के हिसाब से उसमें सेला की एनाटमी भी आ जाती है। कैवर्नस साइनस में सारी जो वही 3rd, 4th, 6th नर्व्स, इवन ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया, और जो मिडिल फोसा के जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे अपने मॉड्यूल्स में जाएंगे। ग्लास बॉक्स ट्रायंगल है, जो आगे सारे ट्रायंगल्स होते हैं उनकी भी एनाटमी पूछ सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको इनमें से कौन सा स्टेशन आता है। इन्फेक्शंस की बात करें, ब्रेन एप्सिस की सीटी स्कैन की सीटी कंट्रास्ट की आपको पिक्चर दे सकते हैं, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। सबड्यूरल एम्पाइमा, टीबी का ट्यूबरकुलोमा है, उसकी पिक्चर आ सकती है। वेस्कुलर में कोई भी एन्यूरिज्म, वेस्कुलर में मोस्टली जो एन्यूरिज्म्स आते हैं वो आपके एंजियोग्राम पे आते हैं। तो एंजियोग्राम पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस वेसल का एन्यूरिज्म है, तो आपकी एंजियोग्राम अच्छी होनी चाहिए। एवीएम वो भी आपको एंजियोग्राम पे आपको दिखा सकते हैं। सीसीएफ का मोस्टली एक मतलब पिक्चर आती है पेशेंट की विथ प्रोप्टोसिस, तो सीसीएफ आप उस तरह आइडेंटिफाई करते हो। और दूसरा उस पर सिनेरियो भी लिखा होता है कि पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस है और पेशेंट को जो है ये फीचर्स ने पिक्चर्स दिखाते हैं, तो उस पर आपसे सीसीएफ के सवाल पूछते हैं। फंक्शनल में ज्यादातर यही, वेस्कुलर में यही आता है। फंक्शनल में डीबीएस, डिफरेंट टारगेट्स पूछ सकते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ऑब्वियसली, और सीजर सर्जरी कभी कभी लेस लाइकली है बट कैन बी, बहुत कम आता है इस तरह से। न्यूरोपैथी में अगर हम देखें तो कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल की पिक्चर दे सकते हैं या सिनेरियो दे सकते हैं, उस पर आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी, रिस्ट जो है वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोअर ट्रंक अपर ट्रंक की इंजरीज हैं उसका सिनेरियो दे सकते हैं। क्लम्पकेस पैल्सी की, अर्ब्स पैल्सी की पिक्चर दे सकते हैं, उस पर वाइवा ले सकते हैं। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है एक पिक्चर देते हैं, सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे दिखाते हैं और क्लिनिकल फीचर्स बताते हैं, और उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। उस सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे में आपको सर्वाइकल रिब नजर आ रही होती है, C7 पे रिब होती है जो कि कंप्रेशन कर रही होती है, तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं थोरेसिक आउटलेट पे बिकॉज ऑफ सर्वाइकल रिब। तो they can be seen, these talk stations can be seen in neuropathy. Degenerative पे सर्वाइकल डिस्क है, सर्वाइकल डिस्क का यही होता है कि आपको एमआरआई दिखाते हैं, ACDF के सारे स्टेप्स आपकी इसी तरह से पूछते हैं सर्वाइकल डिस्क के एमआरआई पे। ओपीएलएल में सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल के लाइन की सिग्निफिकेंस क्या है। हालांकि टॉक्स में इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन जाकर टॉक्स आप दे रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ सिलेक्टेड में आगे आपको एक डेमो दिखाऊंगी, सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस होते हैं तो वो जल्दी कवर हो जाते हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ टाइम बिहाइंड कि आपसे एग्जामिनर जो है वो अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ओपीएलएल पे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ओपीएलएल ज्यादातर आपको सीटी स्कैन पे दिखाते हैं। लंबर डिस्क मोस्ट कॉमनली जो है वो आता है, वही एमआरआई पे होता है, सिनेरियो दिया होता है। थोरेसिक डिस्क, इवन थोरेसिक जो है लिगामेंटम फ्लेवम की हाइपरट्रॉफी और सिरिंगोमाइलिया, ये डिजेनरेटिव डिजीजेज में आती है। ट्रॉमा की बात करें तो CSF फिस्टुला बिल्कुल आता है। आईसीपी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आईसीपी की सारी वेव फॉर्म्स आनी चाहिए, आईसीपी की वेव फॉर्म्स आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, और जितने भी आईसीपी मॉनिटरिंग के मेथड्स हैं वो सारे पूछते हैं, और उनके कॉम्प्लिकेशंस और सारी आईसीपी की जो है आपको एवरीथिंग आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ब्रेन डेथ का क्राइटेरिया क्या है, कौन से इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कॉमाइन ब्रेन डेथ पे आता है। ब्रेन डेथ पे आपसे ये भी पूछते हैं कि डीसेरेब्रेट और डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग की क्या मैकेनिज्म है, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। सर्वाइकल ट्रॉमा जो है C1 C2, कोई भी जैसे C1 के जेफरसन फ्रैक्चर्स आपको एटलस के एक्सरेज सीटी स्कैन दिखा सकते हैं, एक्सियल कट्स ओडोंटोइड के सीटी स्कैन दिखा सकते हैं, सब एक्सियल में एक्सरेज पे सबलक्सेशन आपको दिखा सकते हैं, C5 C6 सबलक्सेशन जैसे फॉर एग्जांपल वो दिखा सकते हैं। उसमें प्रोट्रैक्शन के सवाल पूछ सकते हैं, उस पे जो है वो अप्रोच का पूछ सकते हैं। एटलांटो एक्सियल और सी स्पाइन सबलक्सेशन वो आ गया। थोरेकोलम्बर इंजरी में सारा टीलिक्स का पूछ सकते हैं, जितने डिफरेंट टाइप्स हैं थोरेकोलम्बर इंजरी के वो सीटी स्कैन पे आपको पिक्चर के सिनेरियो देके उस हिसाब से पूछ सकते हैं। कोई भी हेमेटोमा है, EDH सबड्यूरल ज्यादातर आता है, सबड्यूरल, तो सबड्यूरल पे जो है वो उसकी पिक्चर अक्सर CT स्कैन की होती है।
सिनेरियो होता है, उस पर फिर वो सर्जरी इंडिकेशंस पूछते हैं, स्टेप्स वगैरह पूछ सकते हैं इस तरह से। सब एरेक्नोइड कभी कभी आता है तो उसमें आपसे सोर्स ऑफ ब्लीड पूछ सकते हैं। स्कल फ्रैक्चर्स में डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स जो होते हैं उसकी मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, और ट्रॉमा में ये सारी चीजें आती हैं। ट्यूमर्स आपको कोई नहीं छोड़ने, ट्यूमर्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। स्पाइनल ट्यूमर्स में जब बात आती है तो स्पाइनल ट्यूमर्स की जो 4-5 क्वेश्चंस हैं, जैसे एमआरआई वगैरह पे आपसे कुछ चीजें पूछने के बाद वो न्यूरो मॉनिटरिंग पे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। जो भी आपके सेंसरी और मोटर ट्रैक्ट्स हैं उनकी आप मॉनिटरिंग कैसे, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग पे सवाल होते हैं। मेनिंजियोमास एमआरआई पे या सीटी स्कैन पे जो है वो आपसे पूछते हैं। ग्लायोमास कोई भी हो सकते हैं, स्पेशली इंसुलर ग्लायोमास की पिक्चर देते हैं एमआरआई की, उस पे पूछ सकते हैं। फिर उस पे आपसे अवेक क्रेनियोटमी के सवाल पूछ सकते हैं। पिट्यूटरी एडिनोमा मोस्ट कॉमन होता है, वो पूछ सकते हैं। क्रेनियोफेरेंजियोमा है, उस पे सीटी स्कैन पे आपको क्रेनियोफेरेंजियोमा जिस तरह कैल्सिफिकेशन और सिस्टिक कंपोनेंट मिलता है वो पिक्चर रख सकते हैं। कोलॉइड सिस्ट सीटी स्कैन पे। पाइनियल रीजन के ट्यूमर्स, पोस्टीरियर फोसा में एपेंडाइमोमेडुलोब्लास्टोमा और सीपी एंगल के ट्यूमर्स आ सकते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल मेट्स जो हैं वो, स्पाइनल मेट्स इतने कॉमनली नहीं पूछते हैं लेकिन कभी आ सकता है। सेरिब्रल मेट्स का जैसे मैंने पहले बताया कि वो आता है आपका ज्यादातर काउंसलिंग के स्टेशन पे। सो टू गो फॉर द सैंपल टॉक स्टेशन, ऐसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टेशन पे गए हो और ये इस तरह से आपको एक टॉक्स का स्टेशन नजर आता है। पहले ऊपर सिनेरियो लिखा होता है, एग्जामिनर आपको पढ़ के नहीं देता सिनेरियो, आप जाते हो जाके बैठते हो और आपको कहा जाता है कि प्लीज रीड दिस सिनेरियो एंड डिस्क्राइब द एमआरआई। तो आप खुद बैठते हो, रिलैक्स होके आराम से आधा मिनट आप सिनेरियो पढ़ते हो। जैसे आप कैसे कि 32-year-old फीमेल है विथ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नेक पेन, शोल्डर पेन worsened with coughing and neck movements. She also complains of numbness in fingertips. On examination there is no deficit. फिर उसके बाद आप एमआरआई देखते हो। अब यहाँ पे जो टॉक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो आपके बज वर्ड्स होते हैं। जो आपको बज वर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, आप स्कैन देखने से पहले ही आपने वो बज वर्ड देखा है कि लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नेक पेन वर्सेंड विथ कफिंग। तो कफिंग के साथ जो नेक पेन वर्सन होता है तो इट ऑब्वियसली गोज ऑन टू द सीवीजे कैरी मेलफॉर्मेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बजवर्ड होता है। वो आपने एमआरआई देखा, सिनेरियो से ही आपको पता चल गया, आपने एमआरआई देखा, आपको बिल्कुल ही नजर आ रहा है कि देयर इज डाउनवर्ड herniation of the cerebral arteries। Dr. Majavi, उसके बाद जी जी can you ask any participant to do this हाँ हाँ station? In this way, they can also participate, and so थोड़ा आइडिया हो जाएगा। yeah, that's a good idea. So if there is any volunteer who wish to attempt this, आदि तो मैंने चीज बता दी तो आगे बताना आसान होगा। if anyone can volunteer, please raise your hand if anyone wants to do. This is just a practice station, and so थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। So anyone who wants to volunteer can raise the hand in the inbox, and I'll unmute. Don't be shy, this is just a sample station and this doesn't define you कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, it's just for practice. जी डॉक्टर हमजा नोमान, डॉक्टर बाबर can you please unmute Dr. Hamza, he wants to Okay, attend. I am unmuting Dr. Hamza. Dr. Hamza? हेलो 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 डॉक्टर हमजा, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आपको आ रही है क्लियर आवाज? जी जी, क्लियर आवाज़ आ रही है। ओके सो आई हैव रेड द सिनेरियो एंड हम्म, सॉर्ट ऑफ मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया एमआरआई। सो फिर भी ओके, व्हाट डू यू सी इन दिस एमआरआई, डिस्क्राइब द एमआरआई पूछते आपसे ये हैं। अच्छा हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने डायरेक्टली डायग्नोसिस पे जाना है। मैं अगर डायग्नोसिस कहूँगा तो मैं कहूँगा कैरी मेलफॉर्मेशन टाइप 1, या मैं इसमें कहूँगा कि टॉन्सिलर हर्निएशन है। नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, इसमें हम टॉन्सिलर हर्निएशन का ही बताएंगे। आपको ओके उन्होंने फाइन। कहा है कि डिस्क्राइब द एमआरआई, आपसे उन्होंने नहीं कहा कि डायग्नोज द एमआरआई। ठीक है,
तो आपको क्या नजर आ रहा है एमआरआई पे, आप वो बताओगे। अब जैसे इसको आप जी। कैसे डिस्क्राइब करेंगे? This is a sagittal MRI of a patient which is showing tonsillar herniation along with low-lying tentorium with without any signs of hydrocephalus or any ओके, syrinx visible in the cervical cord, I guess. ठीक है, सही। अच्छा, आपको सेजिटल कट का तो आपने बताया, आपको T1 भी बताना है कि है, ठीक है। विद और विदाउट कॉन्ट्रास्ट बताना है, ठीक है। हाइड्रो का आपने बताया, बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपको हाइड्रो का स्पेशली सिरिंग्स में और कैरी में आपको हाइड्रो का बताना होता है। दूसरा के जो टॉन्सिलर डिसेंट है वो अब जो है कंप्रेस करिए ब्रेन स्टेम को, ये भी आपको बताना है, कंप्रेसिंग द हम्म। ब्रेन स्टेम अपर सर्विकल कॉर्ड, ठीक है। ओके डॉक्टर साहब, सो अब जब आपने डिस्क्राइब कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि व्हाट्स द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो आप ओके। ये एक सवाल जो है आपका जो है ना, आप डायरेक्टली सवाल पूछने से पहले वो जवाब नहीं बताएं, आपसे उन्होंने कहा है कि आप डिस्क्राइब करें रेडियोलॉजी को, ये आपका एक सवाल है, आपने बता दिया रेडियोलॉजी में क्या है। अब दूसरा सवाल जो है उसके अलग मार्क्स हैं, तो वो फिर आपसे पूछते हैं कि व्हाट्स योर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो अब आप बताएंगे कि Carry malformation, ठीक है, विच टाइप ऑफ कैरी? type 1. टाइप 1, ठीक है। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, सो व्हाट अदर इन्वेस्टिगेशंस वुड यू कैरी आउट? MRI of the entire neuraxis with contrast विद कंट्रास्ट, व्हाई? to look for syringomyelia and any tumors. ट्यूमर्स? नहीं, व्हाट काइंड ऑफ we will ट्यूमर only आर यू look for एक्सपेक्टिंग? syrinx stooling it. MRI without contrast of the entire neuraxis. ओके, एनी अदर स्टडी which is Uh, very peculiar to this? carry malformation. नहीं, अभी जहन में नहीं आ रही और कोई। If anyone else wants to, एक कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहे तो लिख सकता है। यस, साइन एमआरआई, ठीक है। सीएसएफ फ्लो स्टडी में साइन एमआरआई जो है एक होता है, वो करते हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर हमजा, कंटिन्यू करते हैं। तो साइन एमआरआई बेसिकली हम देखते हैं कि सीएसएफ फ्लो सीवी जंक्शन पे कैसा है, ठीक। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? डॉक्टर हमजा, यू देयर? डॉक्टर हमजा, कैन यू हियर मी? आई थिंक डॉक्टर हमजा की कनेक्शन लॉस हो गई है। डॉक्टर बुरहान, कैन यू वॉलंटियर? जी श्योर मैम। जी डॉक्टर, जी डॉक्टर बुरहान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम डॉक्टर बुरहान, आगे से आपसे कंटिन्यू करते हैं। हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? after a thorough investigation and radiology, I will assess the patient for anesthesia fitness, and after Okay. anesthesia optimization, I will offer surgery, posterior fossa decompression surgery to the patient. ओके, पोस्टियर फोसा डिकम्प्रेशन। अब ये एक सवाल आपका इसमें आ गया। अब जो नेक्स्ट सवाल है, आपको यहाँ पे ये अच्छी बात आपने की कि आप यहाँ पे आके रुक गए, पोस्टियर फोसा डिकम्प्रेशन करनी है। अब आगे सवाल जो है यही होगा कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ पोस्टियर फोसा डिकम्प्रेशन? जी सो डॉक्टर बुरहान, व्हाट आर so द स्टेप? जी uh, so the first step after anesthesia optimization and anesthesia job is positioning of the patient. So I will वो position सब the हो गया, patient. पोजिशनिंग। जी जी जी। Okay, after the positioning and scrubbing and standard operating protocols of the OT, I will start from a midline posterior incision, starting from just below anion up till C1, C2, and we'll do a subperiosteal dissection, and in a T and dissection of fascia in a T-shaped manner, so as to leave a cuff of tissue for the closure in the later on. And we'll, after subperiosteal dissection, we'll do laminectomy of the C1, and followed by adequate exposure of dura.
and will open that, do the durotomy in a Y-shaped manner and reflect the dural edges with tack-up sutures, and will drain out the CSF and make space for the decompression, and see if, and assess the extent of tonsillar herniation, and if there are any adhesions, then those shall be lysed as well. At the end of at the completion of the procedure, I will proceed for watertight closure of the dura and the tight closure in the reverse manner. Are you sure you will close the dura watertight? And you will close it primarily? I'll be using I will close the dura watertight, but not approximate the dura, but will use our dura, dural patch, or some artificial dura to augment the defect. Okay, so can't you use some other thing, or even the periosteum for duraplasty? Yes, we can use periosteum if available, or we can use tensor fascial lata patch as well and use artificial dura. These are the options. That duraplasty is called, what's the purpose of that duraplasty? Dura to primarily close ho raha hai. The purpose of duraplasty shall be to allow more room for the posterior fossa, and to ameliorate any compression that is being caused by the tonsillar herniation. Okay, so that's called what duraplasty? Expansile duraplasty. Yes, so this is a very important word. Expansile expansion duroplasty is a very important word because this is the purpose of this surgery. तो और जो आपने बाकी सारा बहुत अच्छा बताया, वेल डन। बाकी जो क्रेनिएक्टोमी का आपने मेंशन नहीं किया वो भी आप बताएंगे कि 2.5 बाय 2.5 की क्रेनिएक्टोमी आप करेंगे। उसके बाद जो है वो आपने, क्योंकि आपने एटलस की लेमिनेक्टोमी का बताया लेकिन आपने क्रेनिएक्टोमी का नहीं बताया, तो ये एक पॉइंट जो है वो ज़हन में Right, ma'am. Yeah, that I missed. That I missed. बाकी बहुत अच्छा था। दूसरा, जब आप C1 लेमिनेक्टोमी की बात कर रहे हो तो आप वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वर्टिब्रल आर्टरी का आपने नाम लिया तो फिर डिस्कशन वर्टिब्रल आर्टरी पे निकल जाती है। लेकिन आपको थोड़ा ये ध्यान में हो कि लेमिनेक्टोमी करते वक्त आपको वर्टिब्रल आर्टरी का जो है वो ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो एटलस की आर्च पे ही हो। ठीक है, तो वेल डन डॉक्टर हमजा और डॉक्टर बुरहान, दोनों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। तो अभी आगे मैं जिसमें जाऊंगी तो ये सारे एग्जामिनर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैं पूछ रही थी कि पहले आप डिस्क्राइब करते हो रेडियोलॉजी को तो उस पर 2 मार्क्स हो गए, डिस्क्राइब के बाद आप लाइकली डायग्नोसिस आपकी 2 मार्क्स उस पर हो गए, हाउ विल यू मैनेज द केस एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ सबऑक्सीपिटल क्रेनिएक्टोमी। तो इसी तरह से जो है वो आपके एग्जामिनर के पास क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरह से मार्किंग होती है। आपसे जो सवाल पूछते हैं, अगर ये खत्म हो जाते हैं सवाल तो फिर आगे आपसे और कोई सवाल पूछते हैं तो उसके कोई ग्रेस मार्क्स वो देना चाहे तो होते हैं, अदरवाइज मार्क्स जो है वो क्वेश्चंस उनके पास लिखे होते हैं और इसी तरह से वो मार्किंग कर रहे होते हैं। और वैसे इन्हीं क्वेश्चंस में टाइम आउट हो जाता है, क्योंकि जैसे बताया आप 4 या 5 मिनट का आपका टॉक्स का स्टेशन होता है, और जब आप स्टेप्स बताने पे आते हो तो स्टेप्स बताते बताते ही बेल बज जाती है। तो मोर और लेस यहाँ तक ही होता है। अच्छा, अब सब पूछते हैं कि टॉक्स के लिए कहाँ से पढ़े। टॉक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रीनबर्ग, ठीक है। कोई पास्ट स्टेशंस हैं, जितने मॉक एग्जाम आप अटेंड कर सकते हैं वो आप अटेंड करें, प्रैक्टिस करें मॉक एग्जाम्स की, या पास्ट स्टेशंस जो आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, या जो रिव्यू कोर्सेज हो रहे हैं वो आप अटेंड करें। उनमें जो टॉक्स के स्टेशंस होंगे वो आपको जो है हेल्प करेंगे। बाकी जिस बुक से आपको पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा जो है कोई एक्सटेंसिव बुक नहीं यूज़ करनी, आपकी ग्रीनबर्ग इज मोर देन इनफ फॉर टॉक्स। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग शॉर्ट केसेस। टॉक्स के लिए आपको कोई और बुक नहीं पढ़नी। तो इसके लिए ये जब बात आती है तो मैं टिप्स जो दूंगी वो ये है कि बुलेट पॉइंट्स पे फोकस करें, ठीक है। थोरो टॉपिक आपको, जैसी बात है, आपने पढ़ा होगा लॉन्ग शॉर्ट केस के लिए, आपको टॉपिक पता होगा उसके बारे में सारी चीजें, लेकिन टॉक्स के लिए आपको बुलेट पॉइंट्स, आपको बजवर्ड्स याद हो, आपको बुलेट पॉइंट्स याद हो।
तो मोस्टली ग्रीनबर्ग मोर देन 90% स्टेशन कवर कर लेंगे। जो न्यूरो एनाटमी के स्टेशन हैं वो आपको रोटॉन की इमेजेस देखनी होंगी। वो भी रोटॉन उठाने की जरूरत नहीं है, प्लीज रोटॉन उठाओगे तो दिमाग घूम जाएगा। तो रोटॉन के ऑनलाइन लेक्चर्स पड़े हैं, अब यूट्यूब पे काफी जो हैं वो रोटॉन की पिक्चर्स पे लेक्चर्स भी हैं। तो आप सिर्फ जो सिलेक्टेड जो मैंने पिक्चर्स बताए थे आपको, न्यूरो एनाटमी की सीपी एंगल है, ऑर्बिट है, उनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा आइडेंटिफाई करना आप लोग सीख लो। बाकी पूरी रोटॉन बुक उठाने की जरूरत नहीं, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। दूसरा, ई लॉग बुक का मैंने पहले ही बताया था, वो सारी आपको जो है रिव्यू करनी होंगी एंट्रीज। और टॉक्स जो हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स पास कर लेते हैं, तो जब आप क्लिनिकल की तैयारी कर रहे होते हो तो टॉक्स आपका फोकस नहीं होता। आई रिमेम्बर मेरे साथ एक मेरी कॉलीग थी जो कि एग्जाम में अपेयर हो रही थी, तो हम दोनों साथ लॉन्ग और शॉर्ट केस की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उसने जो है बीच में ब्रेक ले लिया, उसने कहा नहीं अब मैं लॉन्ग शॉर्ट केस की मैं प्रिपरेशन नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ टॉक्स की तैयारी करनी है। मैंने उसको समझाया भी, मैंने कहा भाई टॉक्स क्लियर हो जाएगा, टॉक्स के लिए एक दिन पहले ही जो है थोड़ी बहुत स्टेशन सॉल्व कर लेंगे तो वो हो जाएगा, लॉन्ग शॉर्ट केस पे आप फोकस करो। उसने नहीं बात मानी, तो उसका अल्टीमेटली टॉक्स तो क्लियर हो गया लेकिन लॉन्ग शॉर्ट केसेस नहीं हुए। तो टॉक्स इतना मुश्किल नहीं होता है, टॉक्स आपका क्लियर हो जाता है। आप शॉर्ट लॉन्ग केसेस पे फोकस करो, टॉक्स को सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट्स, और ग्रीनबर्ग आपने इतनी पढ़ी हुई है थ्योरी के लिए, अगर आपने क्लियर किया है अभी रिसेंटली, तो टॉक्स क्लियर करना आप लोगों के मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ टॉक्स तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे, अदरवाइज फिर मैं शॉर्ट केसेस पे मूव करूँ। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, प्लीज रेज योर मैडम हैंड। टॉक्स के हर स्टेशन पे टाइम कितना होता है? 5 मिनट्स होते हैं आई गेस 5 मिनट्स होते हैं। थैंक यू वेरी 5 मच। मिनट्स होते हैं इसमें, जिसमें आपने स्विच भी करना होता है फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन एंड सिनेरियो जाके पढ़ना होता है। सो ये आप अपने माइंड में रखिए, 5 मिनट्स होते हैं बीच में। अच्छा, मैं चैट में सवाल देख रही हूँ। काउंसलिंग फर्स्ट, ठीक है। इंट्रा ऑफ अल्ट्रासाउंड, हाँ, इंट्रा ऑफ अल्ट्रासाउंड टू सी CSF फ्लो, कुछ जगह पे लिखा हुआ है कि आप इवन पीडियाट्रिक्स में इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड करते हो बिफोर ओपनिंग द ड्यूरा। अगर आपको CSF फ्लो अच्छा मिलता है तो आपको इवन ड्यूरा ओपन करने की भी जरूरत नहीं होती है, ये कुछ ऑथर्स का मानना है, कुछ ऐसा करते भी हैं, लेकिन बहरहाल इंट्रा अल्ट्रासाउंड का ये रोल है। अगर आपसे पूछते हैं सवाल कि व्हाट्स द रोल ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड इन कैरी सब ऑक्सीपिटल डिकम्प्रेशन, तो आप ये कहोगे कि इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड बिफोर ओपनिंग द ड्यूरा, if it is showing normal CSF between the at the level of the CVJ, we even don't need to open the dura। लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, लेकिन इस तरह से सवाल आ जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है, एक्सपेंशन ड्यूरोप्लास्टी, when to do expansile duroplasty and when to do simple posterior decompression। इसका कोई कंसेंसस नहीं है, वही बात जो मैंने अभी जो कही अल्ट्रासाउंड की, कुछ ऑथर्स का ये मानना है कि जब आप पोस्टीरियर फोसा में क्लिनेक्टोमी कर लेते हो, उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड करते हो और अगर CSF फ्लो इंटैक्ट है तो आप सिर्फ सिंपल पोस्टीरियर फोसा डिकम्प्रेशन कर लो, आप ड्यूराप्लास्टी नहीं करो, आप ड्यूरा को खोलो ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप करो। तो ये वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट है कि आप इस तरह कर सकते हो। ओके, होल ग्रीनबर्ग या ओनली सेलेक्टिव टॉपिक्स, जो मैंने अभी लिस्ट आपको बताई थी वो ही सारे टॉपिक्स तकरीबन कवर हो जाएंगे ग्रीनबर्ग में। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं सिर्फ न्यूरो एनाटमी के ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अलग से देखने होंगे, बाकी सारा ग्रीनबर्ग से कवर हो जाएगा, वही सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए। चैट में ये सारे क्वेश्चंस थे, किसी और को कुछ पूछना हो तो चैट बॉक्स में लिख ले या हैंड रेज कर ले, आई कैन एड्रेस दैट क्वेरी, और इफ नो क्वेरी देन वी कैन मूव टू मैम शॉर्ट डॉक्टर हमजा क्वेश्चन। इज रेजिंग हैंड। जी जी, मैम काइंडली टॉपिक की लिस्ट तो काइंडली दोबारा शेयर कर दें, मैं नमाज पढ़ने चला गया था। अच्छा, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट एंड सॉरी, जस्ट मिनट। अच्छा, ये हैं सारे टॉपिक्स, कंजेनाइटल, न्यूरोएनाटमी, infections, vascular, functional, neuropathic, degenerative, trauma and tumors, ये सारे टॉपिक्स।
डॉक्टर मुस्तफा, चलें आगे? जी मैम, जज़ाकल्लाह मैम। ठीक है, अच्छा, आगे चलें अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। हेलो। Please share the list. Kindly just share the presentation. ठीक है, I'll see if we can share it. When operating on a aneurysm via subfrontal approach, how to decide which side ACA to put? अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत जो है वो आगे जाके जब हम लॉन्ग केसेस डिस्कस करेंगे तब के हैं। एकॉम एन्यूरिज्म का कोई पूछ रहे हैं कि सबफ्रंटल अप्रोच से, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, फोकस करें ऑन टॉक्स फिलहाल। तो ये सारी चीजें लॉन्ग केसेस में फिर डिस्कस होंगी और वो भी 1 by 1। तो इस पे फिर अब हम जाएंगे तो बहुत लंबी कन्वर्सेशन हो जाएगी। Dr. Zishan, when we will start the vascular module, तो उसमें we can go into detail of these topics. आज we need to focus on the general queries regarding the examination. I guess we can move on to short cases. Dr. Babar? Yes, Dr. Mazavi. आप move Okay. करें, we are short on time, so Yeah, I can see continue, that. please. Okay. So short cases 4 होते हैं, MS पार्ट 2 में भी, FCPS पार्ट 2 में भी, ठीक है। ड्यूरेशन 10 मिनट्स होती है। शॉर्ट केसेस का और लॉन्ग केसेस का जो फॉर्मेट है वो MS और FCPS में दोनों का सेम होता है। 4 शॉर्ट केसेस होते हैं, हर शॉर्ट केस की ड्यूरेशन इज 10 मिनट्स। 5 मिनट्स पे आपको परफॉर्म करना होता है, 5 मिनट्स का आपका वाइवा होता है। क्लिनिकल एग्जाम किट इज अ मस्ट। अच्छा, एक और बात मुझसे लोग जूनियर्स पूछते हैं कि टॉक्स में हमें किट लेके जानी है या नहीं। नहीं, टॉक्स में आपको किट की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग केसेस में चाहिए होती है, तो आपको किट आपकी शॉर्ट केसेस में आपको चाहिए होगी। शॉर्ट केसेस लॉन्ग केसेस एक ही दिन में होते हैं। टॉक्स आपका होता है डे 1 पे, अगर वो क्लियर होता है, या बॉर्डर लाइन पे जैसे मैंने पहले बताया, तो नेक्स्ट डे आपका जो होता है शॉर्ट केसेस लॉन्ग केसेस साथ होते हैं। ब्रेक होता है बीच में, कभी कभी शॉर्ट केसेस पहले ले लेते हैं, कभी लॉन्ग केस पहले लेते हैं, लेकिन बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज अ ब्रेक। so if we see okay, ठीक है। एग्जामिनेशन किट जो है वो आपको खुद बनानी होती है, ठीक है, कहीं से मिलती नहीं है। आप मतलब बैग तो आपको मिल जाता है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है वो आपको खुद बनानी होती हैं, ठीक है। तो उसमें रिफ्लेक्स हैमर, ट्यूनिंग फॉक्स, दोनों 512 256 के, हेड क्रेनियल के लिए जो है 512 और स्पाइन के लिए 256 वाला, ठीक है। मेजरिंग टेप फॉर OFC, कॉटन बर्ड्स, या कॉटन बर्ड्स नहीं बल्कि कॉटन जो है वो होता है, उसके आप छोटे से स्वैप बनाते हो फॉर कॉर्नियल रिफ्लेक्स या सॉफ्ट टच के लिए। फंडोस्कोप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडोस्कोप अभी आप लेके रख लें अपना, क्योंकि फंडोस्कोप का जितना भी यूज करेंगे उतना ही वो आपको आपका रिफ्लेक्सेस आपके अच्छे बनेंगे। रोजाना एटलीस्ट 4 to 5 फंडाए आप देखें। नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं, स्पाइन के पेशेंट्स भी फंडस देखें, इतना मतलब फंडस आप इतना ज्यादा करें। टंग डिप्रेसर्स, टॉर्च आपके पास 2 होनी चाहिए, 2 या 3। टूथपिक्स होने चाहिए, स्नेडन्स चार्ट भी होना चाहिए, इशारा चार्ट भी होना चाहिए। स्टिक स्वाब ऐसे होता है कि जब आप करते हो अपना ग्रेग रिफ्लेक्स करते हो उसके लिए। स्टेथ, बीपी ऑपरेटर, थर्मोमीटर, ये सारी चीजें। स्केल आपके पास होनी चाहिए, कोई टॉपटोसिस का पेशेंट है तो उसमें आप मेजरमेंट्स करते हो। परफ्यूम या इतर, एक्स्ट्रा आपको सेल्स होने चाहिए। फंडोस्कोप के सेल्स भी हैं और टॉर्च के सेल्स, ये सारे आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। की फॉर प्रोप्रोसेप्शन, जो प्रोप्रोसेप्शन नहीं, आप उसका देखते हो जो पैराइटल लोब के साइंस पे। कैंडिया ट्वाइस थोड़ी बहुत रख सकते हो, बच्चों जो रो रहे होते हैं उनके लिए। और फोल्डेड एक्सरे होता है फॉर ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। तो ये सारी चीजें, अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव अ पिक्चर ऑफ द किट, अदरवाइज आई वुड हैव शेयर्ड। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी किट में। नाउ हाउ टू अप्रोच अ शॉर्ट केस, ये एक छोटा सा निमोनिक है। वॉश हैंड्स में जाहिर बात है उस वक्त आप जो है वो करते हो, सैनिटाइज कर सकते हो, ठीक है। तो वॉश हैंड्स और सैनिटाइज हैंड। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ क्लियरली। आपको जो है आप उस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस होते हो तो आप ये चीजें भूल जाते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आप अपना इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। पेशेंट को बताओ कि आप कौन हो, आपके क्या इंटेंट हैं। परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंसेंट लो, आपके कंसेंट के मार्क्स होते हैं। अगर आप नहीं लेते हो तो आपके मार्क्स कटते हैं। एक्सपोजर आपका सिर्फ नेसेसरी एरिया, और आप जो है ज़्यादा ओवर एक्सपोज भी नहीं करोगे, अंडर एक्सपोज भी नहीं करोगे, जस्ट प्रॉपर एक्सपोजर। एंड देन रिपोजिशन ऑफ द पेशेंट। रिपोजिशन जब आपने कर लिया एग्जामिनेशन, तो
आपको जो है या तो पेशेंट को उस वक्त एडजस्ट करो, उसके बाद जब आपने पेशेंट को एग्जामिन कर लिया तो आप उसको कवर जरूर करो, थैंक्स जरूर बोलो। और कवर बहुत सारे लोग करना भूल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लो वॉल्यूम की एग्जामिनेशन करते हैं तो फिर दोबारा जो है उसको कवर करना भूल जाते हैं, तो बहुत बुरी चीज होती है और बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है आपको। आपकी सबसे इम्पोर्टेंट आपकी एम्पैथी और आपके एथिक्स है, तो आप वो नहीं भूलें। अपनी भले आप कितने भी स्ट्रेस में हो, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। स्ट्रेस में ही इंसान का पता चलता है वो किस तरह का इंसान है, किस तरह से परफॉर्म करता है। तो जो कॉमन शॉर्ट केसेस आते हैं, ये जो लिस्ट है, दिस इज मोर और लेस जो तकरीबन 80 to 90% शॉर्ट केसेस इसी तरह के होते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा इस तरह का कोई हो जाता है, कोई रेयर ऐसा केस, तो वो दे देते हैं, अदरवाइज इसी में से आता है। ऑर्बिट और आई एग्जामिनेशन इसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसको प्रोप्टोसिस है, आपको शॉर्ट केस में कमांड मिलेंगी एग्जामिन दी आई, और उसमें फिर जब शॉर्ट केस आप पढ़ लोगे 5 मिनट में, वो फिर अलग अलग से जब हम अपना मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन ज़्यादातर प्रोप्टोसिस में जब आप एग्जामिन करते हो, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स बताते हो, तो पीछे फॉर एग्जाम्पल कोई और मेनिंजोमा हो गया, जैसे स्फिनोइडिंग मेनिंजोमा हो गया, ऑप्टिक ग्लायोमा हो गया, इस तरह का कोई पेशेंट होता है तो आपको बताते हैं, उस पर आता है। स्कैल्प या हेड एग्जामिनेशन पे अक्सर केसेस में कोई ना कोई बच्चा रखते हैं जिसमें हाइड्रो का होता है या इंसेफेलोसील होता है, कोई स्वेलिंग हो सकती है स्कैल्प की, डर्माइट सिस्ट है या क्या, क्रेनियोप्लास्टिक का डिफेक्ट है, उसकी एग्जामिनेशन भी आती है कभी कभी पेशेंट अगर होता है तो। फेस एग्जामिनेशन में एक्रोमेगेली का पेशेंट होगा तो फेस एग्जामिनेशन जरूर आएगी, उस पर फिर वो सारा पिट्यूटरी का वाइवा लेते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में फेस एग्जामिनेशन पे आपको कुछ नहीं मिलता। बहुत अच्छा, बहुत से कैंडिडेट्स मैंने ऐसे देखे हैं। टीजीएन में ऑब्वियसली कोई ग्रॉस डिफॉर्मिटी तो नहीं होगी, जैसे एक्रोमेगेली में आप दूर से पहचान जाते हो, या प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा में आप दूर से पहचान जाते हो कि भाई हाँ फेस एग्जामिनेशन में ये है मसला। टीजीएन का पेशेंट तो आप फेस से नहीं पहचान सकते हो, तो अगर आप जैसे एक एक ट्रिक है अगर कोई पेशेंट का फेस आप देख रहे हो नॉर्मल है, तो फिर आपको जहन में होना चाहिए कि ये जरूर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का पेशेंट है, ठीक है, या ट्राइजेमिनल श्वानोमा का पेशेंट है। तो उसमें फिर आपको बहुत सारे जो हैं वो 6-7 नर्व कर रहे होते हैं सब कुछ, और अपर जो है वो ऑर्बिट की जो है वो ऑर्बिट की 3-4-6 क्रेनियल नर्व्स को देख रहे होते हैं, लेकिन वो 5th नर्व को भूल जाते हैं। तो ये चीज आपको जरूर देखनी है, ठीक है। तो टीजीएन का या ट्राइजेमिनल श्वानोमा का पेशेंट हुआ तो उसके फिर एमआरआई पे आपको उसकी वाइवा ले लेते हैं, ठीक है। अपर 6 क्रेनियल नर्व्स में पिट्यूटरी एडिनोमा का सारा वाइवा उसमें आता है, लोअर 6 क्रेनियल नर्व्स में सारा सीपी एंगल ट्यूमर्स का वाइवा, सेरिबेलर एग्जामिनेशन में पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स का सारा जो है वो एग्जामिनेशन आ जाता है, उसका वाइवा आ जाता है। अपर लिम में सर्वाइकल के जो भी पैथोलॉजीज हैं, ट्यूमर हो सकता है, सिरिंग्स है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स्ड है, तो उस पर सारा उसका वाइवा आ जाता है। लोअर लिम में डॉर्सोलंबर का कोई ट्यूमर है या लंबर डिस्क है, डॉर्सल डिस्क है, उसका आ जाता है। हैंड एग्जामिनेशन में अक्सर जो है वो रिस्ट ड्रॉप का, क्लॉ हैंड का या कार्पल टनल का कोई केस होता है, ठीक है। बैक एग्जामिनेशन में जैसे एमएमसी है, टिदर्ड कॉर्ड है, लाइपोमेनिंगोमाइलोसील है, ये सारी चीजें बैक एग्जामिनेशन में आती हैं। तो अब हम एक शॉर्ट केस करते हैं, और कोई वॉलंटियर है तो वो प्लीज हैंड रेज करे। पहले ये सेलेक्ट करना चाह रही हूँ कोई वॉलंटियर हो जो शॉर्ट केस एक करे, आगे एक डेमो का शॉर्ट केस है। सो एनीवन? Guys, this is a very good platform to practice again and again. आपका ऐसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको स्मॉल वो ट्रिक्स पता चलेंगी कि हाउ टू क्रैक द एसेंस ऑफ द एग्जाम। सो वॉलंटियर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अगर स्टेशन आगे दिखाऊं तो फिर उसके बाद वॉलंटियर थोड़ा करने के लिए काफी लोग राजी हो जाएंगे। डॉक्टर बाबर क्या करें, स्टेशन दिखाऊं आगे का? जी, यू कैन डू दैट। अब तो वॉलंटियर करो, अब कर सकते हो, दिस इज एन इजी वन। वालेकुम मैम, डॉक्टर मुस्तफा हेयर मैम। मैं वालेकुम इस
जी जी मैम। जी डॉक्टर मुस्तफा, तो मैम आप इसमें अटेम्प्ट करेंगे इसको? यस मैम। ठीक है, सो द कमांड इज एग्जामिन द बैक ऑफ दिस पेशेंट। यस मैम, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड कंसेंट के बाद यानी कि साइज ऑफ द डिफेक्ट, शेप ऑफ द डिफेक्ट, न्यूरल प्लैकबोर्ड, जोना एपिथेलियोसा, एंड देन any spontaneous movements of the legs. उसके बाद and then you know trans illumination of the defect, the temperature of the defect and the surrounding as well. उसके अलावा pectus cavus या talipes equinovarus या talipes calcaneovalgus, any foot deformity, any sphincter dysfunction, urinary or fecal incontinence, उस चीज को देखेंगे, और सेंसरी लेवल। उसके अलावा मैम इसमें Okay, Dr. Mustafa, very good. Anything else you want to add? हम इसमें फिर MRI एडवाइस करेंगे पेशेंट को। ठीक है, अभी क्योंकि आपके पास ये सिर्फ पेशेंट के एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन के बाद आपसे सवाल पूछेंगे, उसके बाद जब आपसे सवाल पूछेंगे तो फिर आप भले एडवाइस कीजिएगा। अभी जो आपका होता है वो सिर्फ एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स बताना होता है। तो एग्जामिनेशन पे आप और कोई चीज देखना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे? बस मैम। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर मुस्तफा, वेरी गुड। अगर कोई और भी जो है करना चाहता है, कोई चीज मिस हुई हो डॉक्टर मुस्तफा से, कोई और अटेम्प्ट करना चाहता हो, मोस्ट वेलकम, एनीवन कैन वॉलंटियर। ये अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर यासिर बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, डॉक्टर यासिर। जी, असल में ये बच्चों के एग्जामिनेशन में अगर बैक की एग्जामिनेशन हो तो उसमें हेड टू टो हम एग्जामिनेशन करते हैं। स्टार्ट हम बैक से ही कर लेंगे। इंट्रोडक्शन और कंसर्ट के बाद हम स्वेलिंग पे आ जाते हैं। फर्स्ट सिंगल लार्ज ग्लोबुलर स्वेलिंग, उसमें हम स्वेलिंग की तमाम एग्जामिनेशन, उसमें साइज मेजर कर देंगे, टेम्परेचर देख लेंगे, टेंडरनेस और डिफेक्ट देख लेंगे, अंडरलाइन डिफेक्ट पाल्पेबल बोन पाल्पेबल है नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन और अस्कल्टेशन सारे करके, और उसके अलावा स्वेलिंग की एग्जामिनेशन के बाद हम सेंसेशन और मोटर, लोअर लिम्ब के सेंसेशन और मोटर देख लेंगे कि पिंच कर देंगे अगर वो मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ में फुल डिफॉर्मिटीज हमें उसमें नजर आ जाएंगी। फुल डिफॉर्मिटीज के बाद हम रिवर्स उसमें आ जाते हैं एब्डोमेन की तरफ। एब्डोमेन में हमारे पास जो है ना वो आर्नियल ऑरिफिसेस हम देख लेंगे, आर्नियल ऑरिफिसेस इंटैक्ट है क्या नहीं, क्योंकि सिंड्रोमिक पेशेंट होते हैं। तो उसके साथ हम विजरोमेगेली देख लेंगे। विजरोमेगेली के साथ 8 साउंड्स के वो अपने 8 डेक्स्ट्रोकार्डिया तो नहीं है, अपनी जगह पे है, और S1 S2 साउंड्स देख लेंगे। साथ ऊपर जाके हम फेस की एग्जामिनेशन देख लेंगे, उसमें क्लेफ्ट लिफ्ट, क्लेफ्ट पैलेट और ये होगा। साथ उसके बाद फिर एड एग्जामिनेशन पे हम आ जाएंगे। एड के वो सरकमफ्रेंस देख लेंगे। उसके साथ जो हमारे पास फोंटेनेल, एंटीरियर पोस्टीरियर फोंटेनेल देख लेंगे, ओपन है, क्लोज्ड है, और सुचरिंग वगैरह ये साथ में देख लेंगे। वहां पे एक्सकल्टेशन होगी क्योंकि एग्जामिनेशन है 2 से 3 मिनट का कंप्लीट हेड टू टो। तो इस तरह उसमें हैंड में उसके जो ना एक्स्ट्रा फिंगर वगैरह जो हमारे पास सिंड्रोमिक पेशेंट में क्रेनियोसिनोसिस के साथ होता है तो वो साथ में देख लेंगे। नेक में इंसुफिलिसिलो हमने बैक में साथ में देख लिया था, तो वो राउंड अबाउट पूरा बॉडी को हम साथ स्वेलिंग के बाद ये सारे एग्जामिनेशन कर लेंगे। वेरी गुड डॉक्टर यासिर, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया। बिल्कुल इसी तरह करते हैं सारा, क्योंकि मेनिंगोमाइलोसील के जो पेशेंट्स होते हैं, जो हाइड्रो के पेशेंट के अगर हेड एग्जामिनेशन भी आता है उसमें भी आपका तकरीबन सारा ही हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है। मेनिंगोमाइलोसील में भी हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है, लेकिन बस फर्क इतना होता है कि जो आपको कमांड दी जाती है पहले आप उस पर फोकस करते हो। जैसे आपको बैक एग्जामिनेशन का है तो आप सारा स्वेलिंग की और बैक की एग्जामिनेशन कर लो, उसके बाद यू हैव टू टेक
परमिशन फ्रॉम द एग्जामिनर के कैन आई प्रोसीड फॉर रेलिवेंट एग्जामिनेशन, तो जब परमिशन देते हो उसके बाद आप हेड टू टू एग्जामिनेशन ना करो, बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे डॉक्टर यासिर ने बताया, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव इसी तरीके से। तो अब आप जो है डिस्क्राइब इसको कैसे करेंगे डॉक्टर यासिर, जैसे अब आपने एग्जामिनेशन कर ली है, नाउ डिस्क्राइब योर फाइंडिंग्स। As per command, I examined the back of the young child lying comfortably in the couch on mother lap. There's a single large globular swelling in the lumbosacral region, and it measurements 5 by 6 centimeters, and there's skin is intact. There's no oozing, and there's a zona pellucida. The underlying and the temperature is normal to the body. There is no tenderness. Underlying bone is not palpable. The transmission test is markedly positive. The lower limb are mobile, and there's no foot deformities, and the sensation is intact in the perianal region, and the hernial orifices are intact. There's no visceromegaly, and cardiac sounds are normal. The head circumference is comparable to the age of the patient, and the anterior and posterior containers are open. There is no sunsetting of the eyes, no cleft lip or cleft palate, and एक दो क्वेश्चन में बोलिए तो उसमें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एज ऑफ द पेशेंट, और दूसरे जो है ये यूरिनेशन वगैरह हम पूछ सकते हैं कि उसमें, क्योंकि मोबाइल तो हमने देख लिया, यूरिनेशन वगैरह कंट्रोल में है नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात इस पे मैं आने वाली थी कि अच्छा सेंसरी आप बच्चों में कैसे देखेंगे, लोअर लिम्ब की सेंसरी आप कैसे देखेंगे? डॉक्टर यासिर, लोअर लिम्ब में आपने सेंसरी कैसे देखी? आवाज आ रही है? सॉरी, सिग्नल इशू है, थोड़ा सा आवाज में। अच्छा अच्छा, अब आ रही है आवाज? डॉक्टर यासिर, मैं पूछ रही हूँ कि सेंसरी आप बच्चों में कैसे देखेंगे लोअर लिम्ब में? जी जी, अभी आ रही। जी जी, सेंसरी कैसे देखेंगे? अच्छा, शायद कनेक्टिविटी इशू है डॉक्टर यासिर का। एनीबडी एल्स कैन टेल कि बच्चों में सेंसरी कैसे देखेंगे? Any movement to the nauseous stimulus? बच्चे को देंगे उसके नॉक्सियस स्टिमुलस देंगे बच्चे को? नहीं मैं पहले तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स को देखेंगे, और ठीक है, वो तो मूवमेंट्स में सेंसरी का पूछ रही हूँ। काइंडली बता दें मैम, जैसा शायद मैसेजेस में आया है कुछ। हाँ, टिकलिंग द फीट, ठीक है। डॉक्टर माही ने उन्होंने कहा है टिकलिंग द फीट। प्लांटर रिफ्लेक्स भी एक तरह से सही है बच्चों में, वैसे वो अपगोइंग होता है, लेकिन वही चीज बच्चों को जो है सोल पे जब आप जिस तरह प्लांटर देखते हो उस पे आप फिंगर से जब करोगे। जी जी, जो हम पिंच करते हैं उसमें जो ना वो मूव करेगा, तो उसमें ये हो गया सेंसेशन और मोटर हम दोनों उसके साथ ही देख सकते हैं। पिंच आप बच्चों में नहीं करते हो, बच्चों में पिंच नहीं करते हो। वो रोना शुरू करेगा तो फिर जो है वो चुप कराना मुश्किल होता है। और दूसरा ये कि पेनफुल होता है बच्चों के लिए। आप बच्चों को जैसे आप प्लांटर चेक करते हो, आप सोल पे थोड़ा सा उसको फिंगर से टिंगल करोगे तो वो खुद ही जो है अपना पाँव हटाएगा। उसका मतलब ये था कि सेंसरी भी इंटैक्ट है, मोटर भी इंटैक्ट है। तो आप बच्चों में पेन नहीं देते हो। ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि अगर नहीं करा, थोड़ा सा आप उसको हल्का सा जो है वो आप टो को थोड़ा पिंच कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा पेन आप नहीं दोगे। अगर नहीं करा तो आप बोल दोगे कि पावर नहीं है, सेंसरी नहीं है, सिंपल। ठीक है। एक और बात बीच में रह गई थी कि रेलिवेंट क्वेश्चन का डॉक्टर यासिर कह रहे थे
बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन आप जरूर पूछते हो, वो भी आप पहले एग्जामिनर से परमिशन लेते हो, कैन आई आस्क 1 और 2 रेलिवेंट क्वेश्चंस, तो वो जब परमिशन देता है एग्जामिनर तो उसके बाद आप रेलिवेंट क्वेश्चन में पहला बिल्कुल आप एज पूछते हो, ठीक है। दूसरा यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस का फिर आप मदर से पूछते हो कि बार बार जो है वो पेम्पर सॉइल तो नहीं होता बच्चे का, तो दैट विल टेल यू अबाउट द यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस। तो वेरी गुड, आई एम ग्लैड कि जो है वो कैंडिडेट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ, क्योंकि जितना आप अटेम्प्ट करोगे प्रैक्टिस करोगे उतना आपके रिफ्लेक्सेस बनेंगे। तो यही सवाल होते हैं, डिस्क्राइब योर एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, व्हाट्स द मोस्ट लाइकली। अच्छा हमने, हाँ ये सवाल हम आगे जो है मैं करूंगी, तो ये इन सवालों के जवाब देने के लिए कौन वॉलंटियर करेगा। एग्जामिनेशन तो कर ली, 5 मिनट आपने एग्जामिन किया, आपने अपनी फाइंडिंग्स बता दी, अब जो 5 मिनट का वाइवा है वो ये सवाल है, अब इनके लिए कौन वॉलंटियर करेगा। Dr. Baba, I'll take 5 minutes. I'll try to complete it in 5 minutes. Ma'am, Dr. Mustafa here. Yes, Dr. Mustafa. So what's Yes, the ma'am. most likely diagnosis? Myelomeningocele, ma'am. Okay, so how will you manage this case? Yes, ma'am. Elliptical incision is given at the full thickness skin outside the zona epitheliosa, and excision of the neural black cord along with zona epitheliosa, and then adhesions break down and the dura mobilize, watertight dural closure, and then full thickness skin closure, ma'am. Okay. Mother, So that mother को मैम ठीक है, काउंसलर that was a good, no wait a minute, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा रेक्टिफाई करूं, आपने बिल्कुल सारा स्टेप सारे सही बताया, लेकिन मैनेज की जब बात आती है तो मैनेज में इन्वेस्टिगेशंस बता दिए मैंने। और ट्रीटमेंट, ठीक है, और पूरा जो हॉस्पिटल कोर्स होता है आप मेंशन करते हो। मैनेज में ऑब्वियसली इस पेशेंट में आपको MRI ओल्ड स्पाइन और साथ में जो है CT ब्रेन। एग्जैक्टली ठीक है, भले आपको एग्जामिनेशन पे हाइड्रो के साइंस नहीं मिल रहे, लेकिन आप फिर भी MRI स्पाइन तो करवाओगे, लेकिन आप CT ब्रेन भी करवाओगे, ठीक है। और दूसरा फिर आप जब जो है आपने ये करवा लिया उसके बाद यू विल से कि एडमिट दिस केस एंड प्लान फॉर सर्जरी। यस मैम बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू काउंसिल द मदर। इसमें मैम मदर को ये काउंसलर करेंगे कि फॉर एग्जांपल लोअर लिम्ब में पावर नहीं था, इसमें 0 पावर था। यस मैम, इसमें अमूमन ये क्वेश्चन होता है कि पेरेंट्स से कहते हैं कि अगर हमें कोई फायदा नहीं होगा, बच्चे को कोई फायदा नहीं होगा, तो आप सर्जरी क्यों कर रहे हैं। तो हम उनको बताएंगे द गोल ऑफ बैक क्लोजर is to seal the spinal cord with multiple tissue layers to prevent the CSF leakage and to prevent teething of the cord, especially at the during the period of growth spurt. Yes, ma'am. ओके, सो फर्दर काउंसलिंग, जैसे कोई फर्दर प्रेगनेंसी के लिए आप काउंसिल करोगे। Yes, ma'am. Further के लिए कहेंगे कि आप ना women with the history of affected pregnancy should take about 4 mg of folic acid daily when she plan to become pregnant. ठीक है। आउटकम्स और कॉम्प्लिकेशंस तो वो आपने बता दिए। आउटकम्स में अब मदर को आपको यही बताना होता है कि पावर वही जो आपने मेंशन किया कि वो बेहतर होने के चांसेस नहीं होते। बाकी ये है कि आप कॉम्प्लिकेशंस को, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए रिपेयर करते हो। अच्छा, इंट्रायूट्राइन रिपेयर ऑफ मेनिंगोमाइलोसील का क्या रोल है। इसमें मैम ये होता है कि इन यूट्रो क्लोजर में ये होता है कि जनरली जो है ना मैम, वो जो डेड ग्रैन्युलर न्यूरल प्लैकोड होता है ना, वो यूट्राइन वॉल के साथ यानी कि उसको बाइंड हुआ होता है। तो वी द गोल ऑफ बैक क्लोजर इसमें ये होता है कि मैम इसमें इन यूट्रो अगर हम उसको क्लोज कर देते हैं तो उसके अच्छे चांसेस होते हैं कि न्यूरोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के ना, यानी कि जब वो डेड ग्रैन्युलर न्यूरल प्लैकोड जब जितना एमनियोटिक फ्लूइड के साथ एक्सपोज होता जाता है, उस हिसाब से फिर डैमेज ज्यादा होने लग जाता है। इसके लिए जो है वो रेफरेंस, जी डॉक्टर आइड्रो के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें आइड्रो कम हो जाता है, उसमें MMC तो उसके जो न्यूरल टिश्यू वो तो डैमेज होंगे, लेकिन जो आइड्रो है वो उसमें कम हो जाते हैं। हाइड्रो और इवन क्यारी 2 जो है उसके चांसेस कम हुए हैं इस तरह से।
ठीक है, ये किसी ने लिखा भी है, वेरी गुड। रिड्यूस चांस ऑफ कैरी। मॉम्स ट्रायल बिल्कुल यही होता है डॉक्टर मुनीजा, मैं यही बोलने वाली थी कि आप मॉम्स ट्रायल के नाम से एक बहुत बड़ी ट्रायल हुई थी, वो इंट्रायूट्राइन रिपेयर ऑफ एमएमसी पे हुई थी, तो उन्होंने यही देखा कि एज सच जो सिग्निफिकेंट सॉर्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है एज कम्पेयर टू द पोस्ट मतलब फीटल रिपेयर, मतलब पोस्टमार्टम रिपेयर, उसमें एक कैरी का इंसिडेंस कम होता है। हाइड्रो का भी प्लस माइनस, लेकिन कैरी का उन्होंने कहा है कि देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, सिग्निफिकेंट डिक्रीज। अच्छा, अब ये वही सारी चीजें हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी, ये सारी हमने अभी एग्जामिनेशन पे कर ली हैं, मैंने उसको जो है वो एक उसमें करके लिख दिया है सारा एक जगह पे। टिप्स इसके लिए क्या है, शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस सब प्रैक्टिस पे होते हैं, ठीक है। इनिशियली जब आप प्रैक्टिस करो तो आप टाइम लिमिट नहीं रखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वैसे 5 मिनट का शॉर्ट केस होता है, आप अभी शुरू शुरू में जो प्रैक्टिस करोगे तो उसमें टाइम नहीं रखो, आराम से करो, 10 मिनट 15 मिनट लग रहे हैं कोई मसला नहीं है, आपके जैसे रिफ्लेक्सेस बनेंगे आपको खुद ही टाइमिंग में वो हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस जब आप फिर टाइमिंग के साथ स्टार्ट करो तो कोशिश करें कि विद इन 3 मिनट्स आपका हो जाए शॉर्ट केस प्रैक्टिस के दौरान, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस होता है, शफलिंग होती है, तो उस वजह से वैसे 1-2 मिनट आपके जाया होते हैं। दूसरा ये कि प्रैक्टिस तो करें लेकिन आप खुद से ज्यादा सीनियर्स के सामने प्रैक्टिस करें, कॉलीग्स के सामने प्रैक्टिस करें, उससे आपका जो सोशल फोबिया है, जो एग्जामिनर फोबिया है, वो आपका बहुत कम होगा, ठीक है। और अगर 4 शॉर्ट केसेस होते हैं, एक अच्छा नहीं होता तो आप डिसहार्ट नहीं हो, आगे 3 और शॉर्ट केसेस होते हैं, आपका पासिंग रेशियो 60% होता है, तो आपका एक अगर खराब हो भी जाता है तो डजेंट मैटर, आप आगे के अच्छे करो, ठीक है। रोजाना आपको 4 से 5 शॉर्ट केसेस करने हैं वार्ड में। अभी इस स्टेज पे आपके पास जो लेस देन 2 मंथ्स की ड्यूरेशन है फॉर क्लिनिकल्स, और फंडोस को भी जैसे मैंने पहले कहा कि एटलीस्ट 5 to 6 फंडाए, आप इवन स्पाइन के पेशेंट्स में फंडाया जरूर देखो, और रोजाना 1 से 2 लॉन्ग केसेस भी करें। जो इसकी रिसोर्सेज हैं, वो जो शॉर्ट केसेस की रिसोर्सेज है लॉन्ग केसेस की भी सेम है, वो डॉक्टर बाबर बताएंगे। डॉक्टर बाबर, आई एम सॉरी आई टुक ऑलरेडी अ लॉट ऑफ टाइम, सो ओवर टू यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग पेशेंटली। Thank you so much, Dr. Mazhabin, for a wonderful talk. और बड़ा ब्रीफली कंसाइज वे में आपने सारी चीज़ें जो हैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की, एंड रियली हैप्पी टू सी द पार्टिसिपेंट्स द वे दे आर participating, and hopefully this session will be very beneficial for all of you. Dr. Mazhabin, if you can हाँ, स्टॉप share, शेयरिंग। stop sharing तो मैं I think I can't find a stop sharing option. Babar, you should stop share. I can't actually. एक सेकंड पॉज शेयर, हाँ एक सेकंड स्टॉप शेयर, ठीक है हो गया। मेरी स्क्रीन आ गई है उस पे प्रेजेंटेशन की? यस बाबर, वी कैन सी। Yes, sir, आ गई है। Okay, all right. So talks station already discussed by Dr. Majabi. So these are a few books, resources. बहुत ही अच्छी लिखी हुई बुक्स हैं। 100 cases review in neurosurgery and neurosurgery case reviews, question and answers. इनमें कुछ जो स्टेशंस हैं टॉक्स के हवाले से बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन की गई हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर नॉट इवन मेंशन्ड इन द ग्रीनबर्ग। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कैरी का केस, तो उसमें देयर इज द क्वेश्चन सिरिंग्स फॉर्मेशन में पूछते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज। तो वो थ्योरीज जो हैं 100 केसेस में 4 से 5 जो हैं थ्योरीज बताई गई हैं। So sometimes the questioners can ask a few questions that are extra, मतलब they carry the extra marks, additional marks होते हैं, but it's beneficial कि आप ये books देखें। Short cases भी हम discuss कर चुके हैं D10 में। Now let's come to the long case. Now before starting the long case, let me describe you the importance of long case. In my exam, in the talks stations, I just got the passing marks.
कमिंग टू द शॉर्ट केसेस में जो शॉर्ट केसेस थे बहुत अच्छे हुए थे, 2 शॉर्ट केसेस जो थे आई डिड अ फ्यू फंबल्स, मतलब जो बेसिक्स मिस की थी, सो इट वाज टच एंड गो एंड आई वाज नॉट श्योर अबाउट द एग्जाम. But when it comes to the long case was very good, excellent. And so this is also recommended by many of the senior examiners. अगर आपका long case अच्छा होता है तो you are in the driving seat, and जो shortcomings होती हैं थोड़ी बहुत short cases की, and otherwise सब कुछ जो है वो clear हो जाता है, and long case is the most important thing for which you need to prepare. जैसे डॉक्टर महजबीन ने कहा कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर. ये चैट में ओके, सो जैसे डॉक्टर महजबीन, माय प्रेजेंटेशन इज नॉट विजिबल. Can you please share your presentation screen? Okay, just a second. अब नजर आ रही है प्रेजेंटेशन? नो सर, अभी ना फोल्डर्स नजर आ रहे हैं लेकिन ओपन नहीं हो रहे सर फोल्डर्स. फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, ओके, जस्ट अ सेकंड. अब नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर, अब आ रही है सर. Okay, okay, okay. So let's start with the जो बेसिक फॉर्मेट होता है लॉन्ग केस का. व्हाट आई वाज एम्फसाइजिंग ऑन कि लॉन्ग प्रैक्टिस की आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, एटलीस्ट 2 to 3 शॉर्ट केसेस डेली बेसिस पे, और एक लॉन्ग केस एटलीस्ट आप खुद अटेम्प्ट करें. इफ यू हैव अ पार्टनर अलॉन्ग विथ यू तो उसके साथ प्रैक्टिस करें. एक वो लॉन्ग केस करें जिसमें आप जज करें, दूसरा लॉन्ग केस आप करें जिसमें वो आपको जज करें. सो बेसिकली होगा इससे ये कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और जिस तरीके से टाइम लिमिटेड होता है तो यू हैव टू आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो डेवलप करने में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है. सो बेसिक फॉर्मेट इज के यू गेट 30 minutes for the long case, in which 30 sorry, there is exact 1 hour for the long case, जिसमें 30 minutes belong to you, and rest of the 30 minutes फिर examiners जो हैं उसमें question and answer start करते हैं. So the 30 minutes जो आपको मिलते हैं initially, उसमें history taking try to minimize. 10 मिनट के अंदर कोशिश करें कि आप अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज जितना टाइम आप हिस्ट्री में बचाएंगे, यूजुअली 7 to 8 minutes आर इज अ गुड टाइमिंग. सो अगर इसमें आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक एडिशनल टाइम मिल जाता है फॉर द एग्जामिनेशन, विच इज़ वेरी लेंथी एंड टाइम टेकिंग. एग्जामिनेशन में इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो अपनी एग्जामिनेशन है विद इन 20 minutes कंप्लीट कीजिए. आइडियल इज 18 minutes, समवेयर फ्रॉम 15 to 18 minutes में आप अपनी कोशिश कीजिए कि एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर लीजिए. देयर आर एट टाइम्स देयर आर सिनेरियोज जब पेशेंट जो होता है या पेशेंट इज नॉट क्लियर अबाउट द हिस्ट्री, एंड सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो इन दैट टाइम आपको उस टाइम पे इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, एंड हिस्ट्री कैन टेक समटाइम्स टेक 10 more than 10 minutes, 11 or 12 minutes, 13 minutes. तो पैनिक नहीं करना है उस सिचुएशन में. यू नीड टू मॉडिफाई एंड इम्प्रोवाइज योर एग्जामिनेशन. वो टिप्स एंड ट्रिक्स पे हम बात करेंगे वंस वी कम टू द एग्जामिनेशन. एंड trust me on this, do spare 2 to 3 minutes at the end of the examination for compilation. What I used to do
कि टेक अ पेपर, उस पे आप जो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे बायोडेटा, उस टाइम पे बिकॉज ऑफ एंजाइटी पैनिक की वजह से बंदा जो है चीज़ें भूल जाता है, सो इट्स बेटर टू राइट द बायोडेटा, द चीफ कंप्लेंट्स, एंड चीफ कंप्लेंट्स में जो आपको हार्ड फाइंडिंग्स मिलती हैं जो हिस्ट्री पे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बेटर टू राइट देम डाउन. Similarly, at the end of the examination, again you get the time for compilation. तो उसमें जो आपने examination पे hard findings देखी हैं in the patient, जिस पे आपको emphasize करना है once you are describing your history and examination, वो आप उस पे लिख सकते हैं so that you do not miss it, right? So it really helps you in during the exam. Uh, Once you are done with the history and examination, get 2 or 3 minutes, relax down, अपनी nerves को calm down करने के लिए, अपनी जो history है, how you will describe it, and the examination, the important points. And at least at this point, you should have 1 or 2 differentials. Even better अगर आपके जो definite diagnosis है वो भी आपके mind में है. So it is going to help you in the next section, जिसमें examiner is going to ask you. So this is the long case format: history, examination, and compile yourself. Now, the next 30 minutes, you will be presenting your case to the examiner. The examiner will ask you to present the case, history, examination. अच्छा, होता ऐसे है कि हिस्ट्री में इट्स बेटर कि आप हर चीज़ जो है बताइए, even those things which are important but negative है पेशेंट में, वो भी बताइए. बट इन एग्जामिनेशन जो द हार्ड साइंस जो आपको मिली है वो डिफाइन कीजिए, और जो डायग्नोसिस आप अपने माइंड में बना रहे हैं और उसके मुतालिक जो फाइंडिंग्स हैं जो आपको नहीं मिली हैं पेशेंट में, वो भी आप उसमें बता सकते हैं टू मेक योर डायग्नोसिस स्ट्रॉन्ग, अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए. एट द एंड ऑफ इट, द एग्जामिनर कैन आस्क यू टू समराइज इट. समराइज में आप जो सारी फाइंडिंग्स थी, फॉर सपोज आपको पेशेंट लोअर लिम्ब वीकनेस मिली है अलोंग विद द अपर मोटर साइंस, सो यू हैव टू डिफाइन इट इन अ वे कि पेशेंट में आपको पैरापरेसिस मिली है, एंड विच इज पेशेंट में आपको with the increased tone, so you have to define it in a way कि upper motor signs जो है पेशेंट में पॉजिटिव हैं, so that the diagnosis जो आपकी है, या the examiner basically gets the idea कि जो localization है वो कहाँ पे होने लगी है, which is going to be the next question of the examiner, in which you have to tell the examiner कि आपकी जो localization है, for suppose it is in the dorsal spine. Right. So the next question of the examiner would be to tell differentials. Examiner directly diagnosis पे भी पूछ सकता है. In cases जो बड़े simple cases होते हैं, उसमें examiner directly पूछता है कि what is your diagnosis, and then he asks you कि what could be the possible differentials जो आप सोच रहे हो. Or it can be the other way around. The examiner can ask you, so what are the differentials in your mind, and then he'll ask you what is your definite diagnosis about that particular case. The next step would be either the examiner is going to give you the important investigations, for example, the CT scan or the MRI of the patient. Let's do it in a way that it's a mass in the dorsal spine, right? So now the examiner can ask you, how will you manage this patient, or what are you going to do next in this patient? So what you can start, you have already presented the history and the examination. So कुछ जो candidates हैं वो ये lines जो है cram करके जाते हैं, and at times ये जो है चीज़ irritate करती है examiner को. Already you have given the history and examination, and again if you are going to say okay sir, after taking the history and examination I'm going to go for the investigation, so it's better okay on the basis of my history and examination, sir, I will further like to investigate this patient, and then the examiner will ask you what kind of investigations. In investigations, the examiner is going to start from the basic. For suppose
if the MRI and CT both have been done, so the examiner can give you the MRI or the CT scan, and he will ask you to describe the findings. At this moment, do not jump onto the diagnosis and just describe the findings in the CT scan or the MRI. And then the examiner is going to ask you, okay, now once you have seen the investigations as well, for suppose the MRI in which you clearly you can see a mass in the dorsal spine, which is compressing the cord as well. Maybe it is arising from the bone. So at this moment, you can describe the findings and give your possible diagnosis. The examiner can ask you, now what will do next. So if this is a mass that is arising from the bone, so now you can ask the examiner that I would also like to go for the CT of the spine to see how is the bone, matlab jo mass hai, is it arising from the bone, or what is the general condition of the bone in case if you want to go for the fixation, if you have to do the laminectomy at more than 2 or 3 levels. So anyhow, so this is how you are going to smartly tackle down between the different investigations. Like for suppose in cases of the meningioma, when all the MRI, all the cuts are already given, but still you want to see the vascular supply of the tumor. So you have to ask the examiner, I'll like to go for the angiogram as well in this patient. So investigations, you should be on top of MRI, CT scan. Again, very important thing is practice. Start describing the CT and the MRI in front of the seniors, in front of the juniors, even in front of the patient or patient attendant. Once you start explaining it, फिर आपके जो अल्फाज हैं वो आपके मुंह पे खुद ही उस टाइम पे आना शुरू हो जाएंगे एज अ रिफ्लेक्स, और फिर मुश्किल नहीं होगी. एटलीस्ट यू शुड be able to define the findings on the investigation, MRI or the CT scan. Diagnosis is the later part. So it is very important कि आप investigations को पढ़ना जो है and उसको describe करना या define करना ज़्यादा से ज़्यादा practice कीजिए. The next step would be to how you are going to manage it. Already the diagnosis has been established. Now this is a very tricky and very important part in which you have to you will obviously start from the medical management and then you'll jump onto the surgical management. In the surgical management, name the procedure first and then let the examiner ask you what would be the steps of that particular surgery. जैसे अभी सब ऑक्सीपिटल डिकम्प्रेशन की बात हुई थी, तो जस्ट नेम द प्रोसीजर एंड देन लेट द एग्जामिनर आस्क यू कि व्हाट आर द स्टेप्स. उसमें फिर आप स्टार्ट करेंगे विद द कंसेंट, प्रॉपर काउंसलिंग. अच्छा, काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम. समटाइम्स फॉर एग्जांपल देयर इज द केस ऑफ द GBM. So the examiner is going to ask you, okay, this is the mother, or for suppose this is the mother, this is the father or the sibling of the patient, and now you have to counsel the attendant regarding the case. What are you going to operate? What are the possible options? So वो सारी चीजें जो काउंसलिंग की हम प्रैक्टिस करते आए हैं, जैसे टॉक्स की स्टेशंस में, IMM की टॉक्स में हम there was a proper station for the counseling. इसमें भी टॉक्स में भी स्टेशन दे सकते हैं at counseling for the counseling. Similarly, in the long case, this aspect is very important, and the examiner can ask you to counsel for 5 minutes or 3 or 4 minutes. Sorry, not 5 minutes. 5 minutes बहुत हो जाएंगे. 3 or 4 minutes you have to counsel, and you have to do the interaction with the attendant of the patient. In the surgical steps, the examiner can go in very micro details. We'll discuss in the next few slides that what are the important sources from where you can study. Like for example, there are certain procedures which are hot favorite of examiners. For example, transsphenoidal approach, CP angle approach, or the endoscopic ETV,
So there are many of these procedures. So you need to have a very good information, detailed information about these procedures. So the Greenberg is not enough. So you need to use other resources as well. Schematic में this is a book Schematic जिसमें बड़े अच्छे से define किए गए हैं procedures. Transphenoidal approach, CP angle tumors बड़े अच्छे से define किए गए हैं. Then for the meningiomas, Al-Mefti की book है. That is very important book, very nicely written. उसमें जो है हर लोकेशन का जो मेनिंजोमा है उसमें सर्जिकल स्टेप्स, उसकी एनाटमी बड़े अच्छे से डिफाइन की गई है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, डू नॉट टेक एनाटमी लाइटली. कुछ एग्जामिनर्स होते हैं जिनकी एनाटमी बहुत स्ट्रांग है. I don't know, are familiar हैं Dr. Mumtaz, Dr. Atiq, Dr. Imran. So there are many examiners, Sir Khalid, Mahmood. So they will go into the micro details of anatomy. So you need to have a clear knowledge about the blood vessels, the bony part, and everything. After surgical steps, the next question is going to be complications, post-op care of the patient, and what would be the prognosis. And very important one is the recent advancement. In the recent advancement, they can ask you about, for suppose in the GBM, they can ask you about the radiochemotherapy, the step regime, and they can ask you about what is the prognosis, how many months the patient can survive, and things like that. In the surgical steps, they will also ask you about any gadgets, any important, any thing. Okay, I'm sharing the name of the book and the picture as well. We'll share this presentation at the end, so just hang on. Okay, all right. So moving on to the, now this one is very important. In the long case, as I told, the first 30 minutes belong to you. So this is how much marking is important in that area. Around 20% history taking and 20% is your clinical examination, and 20% is how you present your case. So 100 में से 60% or more than 50% जो आपकी मार्किंग होती है, it's just based on your performance. आपने हिस्ट्री कैसे ली है, आपने एग्जामिनेशन कैसे की, कोई चीज उसमें आपने मिस तो नहीं की है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर. एट टाइम्स few things हम मिस भी कर जाते हैं, but you need to be very confident at that time. And a very important tip, कि there are usually two examiners. One is the observer, second one is the primary examiner. So the examiners are very smart. Don't try to fool them. जो चीज आपने मिस की है, इट्स बेटर कि आप उसी टाइम पे उसको एडमिट करें, रादर देन कि आप उसको कवर अप करना शुरू कर दें, एंड देन द एग्जामिनर विल गेट एंग्री, और वो फिर आपको छोटी छोटी चीजों में फंसाना शुरू कर देता है. द थिंग्स व्हिच यू मिस डाउन, जस्ट मेंशन देम कि यस सर आई मिस्ड इट, एंड सो यहाँ वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी. इफ यू कैन जस्टिफाई इट तो आप उसको मूव ऑन कर सकते हो. डायग्नोसिस, बहुत सारे हमारे माइंड में ये चीज होती है कि हमने डायग्नोसिस गलत बताई थी, इस वजह से हमारा लॉन्ग केस खराब हुआ. नाउ दिस इज द बेसिकली द टर्निंग पॉइंट इन योर लॉन्ग केस. Diagnosis is very important, but it is not the ultimate. At times when you are very good in rest of the case, but uski jo diagnosis hai, for suppose agar there's a easy case like the, for suppose suprasellar mass hai and pituitary adenoma, as a FCPS part 2 candidate, MS part 2 candidate, you cannot miss it. But at times there are unlikely possibilities or लेस कॉमन डिजीज जो होती हैं, उसमें इवन इफ अगर डायग्नोसिस आपने गलत बताई है, बट उसकी लोकेशन एंड आपका जो रेस्ट ऑफ द केस आप अच्छा लेके चल रहे हैं, तो द एग्जामिनर कैन इवन पास यू इन दैट केस. सो डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट अल्टीमेट कि मैंने डायग्नोसिस गलत बताई थी, इसकी वजह से मेरे जो सारा वो है लॉन्ग केस उन्होंने फेल कर दिया.
The next step is the investigations, how you are going to define the investigations, very important aspect. It carries 10% of the marks. Management, 15%, and then the complications, 10%. Recent advancement is 5%. It's important, again, small जो छोटी छोटी चीजें हैं सारी मिला के and they make up the long case. Similarly, हमारी जो ट्रेनिंग होती है 5 years की, this is the हमारा अल्टीमेट जो गोल है टू पास द एग्जाम. सो ये छोटी छोटी जो सारी चीजें हैं मिलके हमें मदद करेंगी टू पास द एग्जाम. सो ईच एरिया यू हैव दिस इज ये एक डेफिनेट मार्क प्लान नहीं है बिकॉज सीपीएसपी का जो क्राइटेरिया है नोबडी नोज इट, बट दिस इज द जनरल आइडिया कि इतनी परसेंटेज या वेटेज कैरी करता है ईच एस्पेक्ट. सो you get the idea कि कितनी आपको मेहनत करनी है in each of this component. Now coming to the history taking में न्यूरोसर्जरी के 7 या 8 मेन चीफ कंप्लेंट्स हैं जिससे पेशेंट will present to you. Headache, loss of consciousness, seizures, visual change, hearing loss, motor weakness और speech difficulty or change. तो ये जो मेन चीफ कंप्लेंट्स हैं they should be on tip of your fingertips. आपको सारे जो क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दीज चीफ कंप्लेंट्स आपको याद होने चाहिए. लाइक आई हैव इंक्लूडेड एन एग्जांपल ऑफ हेडेक. सो वेरी कॉमन फीचर बैकएक हेडेक. द पेशेंट विल present with it. Same questions, onset and was it sudden or gradual? What is the location of the headache? Is it intermittent or is it continuous? In case if it is intermittent, you have to ask about when the headache is the maximum. सबसे ज़्यादा दर्द किस टाइम पे, दिन के किस टाइम पे होता है, और एपिसोडिक अगर पेन है तो कितनी देर के लिए वो एपिसोड चलता है, और हाउ ऑफन यू गेट दीज एपिसोड्स, डेली बेसिस पे और इन अ वीक, लाइक दैट. व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द पेन, हाउ सिवियर इज द पेन. फॉर पेन को नापने के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं कि शदीद दर्द होता है, बर्दाश्त के काबिल नहीं होता, और इफ द पेशेंट इज educated, you can also ask a visual scale पे from 1 to 10 pain कितना होता है, and how it affects your daily routine. Next question would be does the pain radiate, how the pain aggravates, what are the this question is very critical and very important for establishing diagnosis. The aggravating factors, like for suppose in the pain of carry that aggravates on coughing and straining. So questions like this are going to define the headache. Headache is a very vague kind of symptom, and so there can be 100 if not 1,000 possibilities from the same symptom of the headache. So you need to refine your history taking. The main objective of history taking is to reach to a diagnosis. बचपन से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं from the clinical attachments के 60-70% of your diagnosis is based on the history. So use this tool in that way. Use leading questions, जो misleading चीजें the patient is telling you, rule them out कि ये possibility तो नहीं है, और try to get to the diagnosis, definite diagnosis on the basis of history taking. The next one is the associated symptoms like nausea, vomiting, fever, diplopia, seizures, so on and so forth. Have you ever had such kind of pain before? And is the headache preceded by any blinking light or certain there's an aura or something? So these questions are more than enough, and by the end of this detailed history, you should have at least if not one, at least 2 or 3 possible diagnoses in your mind, so that you can refine them in the rest of the history. And in the examination, you can be you should go pinpointed towards that examination. Coming to the examination, अब examination में जैसे हमने एक time 20 minutes, let's suppose from 15 to 20 minutes, let's take 18 minutes as an average, जिसमें आपने अपनी examination को complete करना है. Obviously, you will start with the introduction, taking consent, proper exposure.
जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, कमिंग टू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ये क्वेरी एग्जाम के टाइम पे हमें भी बहुत होती थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये क्वेरी होती है कि डू वी नीड टू डू द कंप्लीट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। गाइस नाउ अब जो examiners हैं, there are two type of examiners. There are examiners which are old school type. So who will judge you on the general physical examination? कि आपने टेम्परेचर क्यों नहीं चेक किया, आपने ब्लड प्रेशर क्यों नहीं चेक किया, आपने छाती क्यों नहीं सुनी पेशेंट की, आपने पेट को क्यों नहीं हाथ लगाया। सो बी प्रिपेयर फॉर इट। और जो आप लॉन्ग केसेस अभी वार्ड में प्रैक्टिस करेंगे, उसमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को लाजमी तौर पे आप कीजिए। At times there are examiners who are kind of मतलब lenient, और वो कहते हैं कि physical examination की नहीं, और for suppose doctor there is no need of taking the blood pressure or the temperature, and if there is case of the spine, so for example the dorsal spine का tumor का case है, so they will say कि general physical examination आप skip कर सकते हैं। That can be a grace, या उस टाइम पे आपको it can be kind of a bounty, but be prepared for the complete general physical examination, जिसमें आपने हाथ भी देखने हैं पेशेंट के, आईज पे भी सारी देखनी है चीजें, एयर, नोज, माउथ, हर चीज पे आपने ध्यान देना है। While you are doing the general physical examination, like for suppose blood pressure आप चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर पेशेंट का चेक कर रहे हैं, try to maneuver, इसमें एड ऑन कर दीजिए आप हायर मेंटल फंक्शंस को। हायर मेंटल फंक्शन जब हम डिटेल में जाएंगे इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स, तो हायर मेंटल फंक्शंस को भी हम फर्दर इसको डिफाइन करेंगे कि वाइल डूइंग द एग्जामिनेशन आपने हायर मेंटल फंक्शंस के 5-6 मोटे मोटे सवाल पूछ लिए, ऑन द बेसिस आपको मिनी मेंटल स्कोर जो है वो पेशेंट का पता चल जाएगा। लाइक फॉर सपोज के आप कहाँ बैठे हैं इस टाइम पे, या कोई उसको प्रॉब्लम दे दी कि इस टाइम पे आग लग जाएगी कमरे में, तो फिर आप क्या करोगे, 3 चीज़ों के नाम याद रखने एंड एवरीथिंग। So by the time आपका general physical examination end होगा, you should have also ended up your higher mental functions, ये वहीं पे हो जाने चाहिए। Then comes the lobar examination. In the lobar examination, एक दो चीजें जो मोटी मोटी चीजें हैं, like the calculations, like the sensory motor, या जो है वन साइडेड पेशेंट को नेग्लेक्शन तो नहीं है। सो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू क्वेश्चंस, इस टाइम पे आपको ये चीजें जो है असेस कर लेनी है लोबार एग्जामिनेशन की। रेस्ट यू आर गोइंग टू डू व्हेन यू आर स्टार्टिंग द प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जो नेक्स्ट प्लान आपका होना चाहिए, फॉर सपोज इट इज अ केस ऑफ ब्रेन, तो आपने जो स्टार्ट करनी है, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम दी, देयर आर डिफरेंट प्लान्स, बट दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट, और जो आप अपना रूटीन बना लीजिए सो दैट यू डोंट मिस द थिंग्स। स्टार्ट फ्रॉम द क्रेनियल नर्व्स, राइट फ्रॉम 1 to 12, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी है, डू एवरीथिंग। लाइक फॉर, मैं स्किप करने का इसलिए कह रहा हूँ कि व्हेन वी कम टू दी 8th cranial nerve, तो हम कहते हैं कि रीनीज और वेबर हर पेशेंट में करनी है या नहीं करनी है। सो व्हेन यू रीच दैट पॉइंट, यू कैन आस्क द एग्जामिनर, कैन आई स्किप दिस टेस्ट, और अगर एग्जामिनर कह रहा है कि करनी है, अगर नहीं कह रहा तो आपने वो करनी है। बाय डिफॉल्ट आपने सारी क्रेनियल नर्व्स जो है चेक करनी है पेशेंट की। देन राइट आफ्टर क्रेनियल नर्व्स कम टू द सेरिबेलर एग्जामिनेशन। अच्छा, इसमें अगेन वंस वी स्टार्ट डूइंग द लॉन्ग केसेस, तो फॉर सपोज व्हेन यू वर चेकिंग द आईज, तो आईज जब आप पेशेंट की चेक कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपने निस्टैग्मस भी चेक कर लिया, दैट वाज फॉर द सेरिबेलर एग्जामिनेशन। अगेन जब सेरिबेलर एग्जामिनेशन आ जाए, तो फिर ये जरूरी नहीं है कि अगेन आप पेशेंट की जो है आई मूवमेंट करवा रहे हैं। इट इज गोइंग टू सेव यू टाइम, it is going to show the reflexes and how much you have worked in the ward, so examiner kind of gets impressed कि हाँ जो कैंडिडेट है, he is confident enough, और उसने ये सारी चीजें ऑलरेडी कर दी थी, so he is not doing the repetition of the same thing again and again. Then you come to the neck examination, upper limb examination, lower limb examination. Checking the back of the patient is very important. The examiners are very strict about it कि आपने dorsal lumbar spine का केस था। अच्छा, let's now come to the dorsal spine का केस आता है, how you are going to approach that. After doing the general physical examination and you have checked the higher mental functions while doing the physical examination, you can directly jump onto the lower limbs. There is no need of doing cranial nerves and cerebellar examination at this point.
you can directly start the lower limb examination. Lower limb examination जब आप complete कर लें, तो now you can come on to the upper limb examination to find के कोई upper limb में finding भी तो नहीं है, dorsal नहीं, क्या पता cervical में कोई lesion तो नहीं है. In this way आप जो है retrogradely अपनी examination को move करें. Coming to the upper limbs, अगर upper limb में आपको इतनी कोई मोटी findings नहीं मिली हैं, so now you have established your diagnosis के the जो pathology है, it is in the dorsal spine. Then coming to the cranial nerve examination, once you are sure about your diagnosis, cranial nerves में we call it as the screening test. टाइम्स में जैसे मैंने कहा था कि इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, हो सकता है कि हिस्ट्री में आपने ज़्यादा टाइम ले लिया है, एग्जामिनेशन में लोअर लिम्ब की ज़्यादा टाइम ले लिया है, एंड नाउ टाइम नहीं बचा है फॉर द कंप्लीट क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन. सो स्किप कोई भी चीज़ नहीं करनी है बिकॉज इट्स अ लॉन्ग केस. तो उसमें आप 1-2 स्क्रीनिंग के टेस्ट करवाते जा सकते हैं. और सपोज क्रेनियल नर्व नंबर 1 में सिर्फ आपने स्मेल करवा दिया, क्रेनियल नंबर 2 में आपने पेशेंट की जो आई क्रेनियल 3, 4, 6 की आपने आई मूवमेंट्स चेक कर दी पेशेंट की. इस तरीके से आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं एट दैट टाइम अपनी जो एग्जामिनेशन है, एंड फ्यू जो चीज़ें हैं उसको स्किप भी कर सकते हैं. चेकिंग द गेट ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोअर लिम्स की बात चल रही है तो यू हैव टू ऑल्सो टॉक अबाउट द perineal sensations. Even if you cannot perform it, you have to ask the examiner ke I want to do this examination, and examiner will say ke skip kare, but you have to mention it. You need to check the complete back of the patient after exposing it, and you also need to see the perineal sensations. Now coming to the common long cases, there are few cases which are very important, which are favorite of the examiners: suprasellar lesion, CP angle lesion, parasagittal or falcine tumors, low grade insular glioma, high grade glioma, brain mets, posterior fossa lesion, CVJ anomaly, olfactory groove meningioma, CSF fistula, sphenoid wing meningioma, vascular aneurysms. There are many other topics, but these are the hot favorite topics of examiners. So you should be prepared from A to Z, head to toe. इन केसेस में आपने अच्छे से प्रिपेयर जाना है. स्पाइनल केसेस में सर्वाइकल डिस्क वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन. लंबर डिस्क, thoracic disc, rare one, but you should be prepared for it. TB spine is again very common, and the spinal tumor. ये if you are not unlucky on the day of the exam, these are the cases जिसमें से घूम फिर के आपके पास long case आएगा, and you should be well prepared for it. Now coming to the study material, Greenberg is very good for the theory, very good for the talk stations, at times short cases. For the short cases and long cases के लिए आपको other stuff भी पढ़ना पड़ेगा, आपको practice करनी पड़ेगी अच्छी. There are few things जो आप examiner से मतलब board में जब आप अपने seniors के सामने practice करते हैं, for suppose in case of craniopharyngioma, there are a lot of classifications. In the suprasellar lesion, there are a lot of classifications जो आपने पढ़नी होती है, hardest classification, and also उसके लिए आप other resources use कर सकते हैं. Human इस time पे उठाना it's very lengthy. Schematic जैसे मैंने कहा कि जो procedures हैं बड़े अच्छे लिखे हुए हैं schematic में. For suppose suprasellar lesions हैं, transsphenoidal approach, CP angle tumors, तो schematic is very good book जो अभी आप पढ़ सकते हैं. Then there is Rangachari. Rangachari is very important for the congenital or pediatric जो disease हैं उसके लिए, toxic patients के लिए भी even. This is a very good book, Rangachari. Then there is Snell Clinical Neuroanatomy for a few important neuroanatomical things. This is the LMFT, which is very important book for the meningioma. हर region का, हर location का meningioma जो है बड़ी detail में इसमें बताया गया है. कैसे आप differentiate करते हो tubercella और olfactory groove meningioma को, दोनों को approach कैसे करते हो, anatomy, vessels and everything very well defined in the LMFT. और इस book को आप जो important one meningiomas हैं, again इसमें there is a long list of कोई 20 chapters हैं.
देयर इज शॉर्ट टाइम, सिलेक्टिव पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले कवर करना है, अगर टाइम बच जाता है तो दूसरी चीज़ें देखें, अदरवाइज स्टिक टू द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और उसमें अल मफ्ती में आप टिक कर लीजिए 6-7 जो ट्यूमर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस हैं, पहले उनको पढ़िए, देन सी द रेस्ट। Then there are books, there are many of the books, so खुद को confuse नहीं करना है इस स्टेज पे। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड cranial में भी अवेलेबल है एंड स्पाइन सर्जरी में भी अवेलेबल है। Why I'm recommending these books? स्पाइन सर्जरी में स्पेशली C1 C2 फ्यूजन प्रोसीजर्स बड़े अच्छे डिफाइन किए गए, सर्वाइकल प्रोसीजर्स जो हैं बड़े अच्छे डिफाइन किए गए हैं। इसमें जो आपकी टिलिफ, प्लिफ, एलिफ सारे जो प्रोसीजर्स हैं बड़े अच्छे डिफाइन किए गए हैं अगेन इन दी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड इस बुक में। This is the operative cranial neurosurgical anatomy. Anatomy is very well defined in this book. And so I think a lot for today. And we are announcing a neurosurgical course in which we are in the 7 modules. We are going to cover the entire neurosurgery, including pediatric neurosurgery, neurotrauma, adult tumors, spinal lesions, including the tumors, degenerative spinal disease, vascular neurosurgery, functional and peripheral nerve surgery. हर वीकेंड को हम कोशिश करेंगे कि सेशन कंडक्ट करें जिसमें each module we are going to cover it. The details we'll soon share in the group. So the candidates who are appearing in the exam right now, we'll try to compile all these sessions before the exam, that is in the November, और हर वीकेंड को एक मॉड्यूल कवर करेंगे हम इसमें। In the end, there are no secrets to success. It is the result of preparation, how well you are prepared, hard work, and learning from the failure. As Dr. Mahjabeen said, failure को हमने पता नहीं क्यों ऐसा word समझा हुआ है, but again, failure is basically it's a step towards the success, and so gracefully accept it and prepare for the next session. Dr. Babar, thank you very much for this session. Please, can you please tell me when is going to be the next module or session at a part of this series? Dr. Burhan, Dr. Mahjabeen, and me, we are going to discuss about it, and very soon we are going to announce these sessions, and most probably not this weekend, but from the next weekend, as we know कि 3 बड़े कम बचे हैं एग्जाम में, तो नेक्स्ट वीकेंड से हम जो हैं इन जो सेशंस हैं वो स्टार्ट करेंगे, एंड वील शेयर द लिंक and the procedure, how to get registered for it, and all those candidates who are interested can register for it. Thank you very much. Dr. Mahjabeen, are you there? Yes, I am here. So it was a very comprehensive presentation. Thank you, Dr. Babar. And I second you, Dr. Babar, that we'll be announcing the details soon about the module. And that was like a rough idea which Dr. Babar shared कि जो 6-7 चीज़ें हैं वो हम मॉड्यूल वाइज डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये होगा कि वीकेंड्स पे जैसे सैटरडे संडे हैं उसमें हम एक दिन में टॉक्स और शॉर्ट केसेस करेंगे और फिर एक दिन में हम लॉन्ग केसेस करेंगे। तो उसमें ये होगा कि लॉन्ग केसेस भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो हमारे मॉड्यूल में रजिस्टर करेंगे उनको ही हम वॉलंटियर करेंगे, 1 बाय 1 उनको चांस देंगे और जिस तरह से वर्चुअल मॉक एग्जाम होता है उस तरह कंडक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आगे जो कोई मिस्टेक्स होंगी उनमें कोई रेक्टिफिकेशंस करनी होंगी या उस चीज़ों को सही करके बताना होगा तो we'll try to present those topics in a brief way as well.